Very good evening to all of you. We are live now. If you can see me, if you can hear me, please type yes. I am good. I am good. Good. Great. Some people are still struggling to join. So we will wait for 1 or 2 more minutes. In the meantime, okay, so I need your complete undivided attention. There wouldn't be no distraction. Keep your pen and paper handy. If you have any question, do ask me after the webinar. And the people who would be watching and listening this webinar into the recorded format, right, I request all of you to complete in one go. Okay. Good evening, all of you. I am good. Thanks. I'm so excited to have all of you in this webinar. The people who are joining today for the first time, you must have received all the recording and a complete access of this course by today afternoon. If not, then you will get by tomorrow. Okay, great. So we will discuss the day before yesterday's homework, the word what I gave. Please help me out. The word what I just gave. Assuage. Good. People started typing meanings as well. Make an unpleasant feeling less intense. Synonyms are relieve, ease, alleviate, soothe, mitigate, dampen. Good. Assuage. One person wrote satisfy. I can't say this word ki satisfy bhi iska hona chahiye ya nahi hona chahiye. Okay. To calm down. Mitigate, relieve, soothe. Good. Type the sentence. The sentence what you must have made. PM Modi's speech to country assuages the fears of most Indian. Okay, good. Alcohol drinking may assuage distress, but it will upset overall health. Yes, you could say. Announcement of package by our PM helps to assuage losses due to lockdown. Good. The sentences what you have made, sentences सही हैं सारे के सारे. कहीं मुझे एक दो जगह देखना है वो मैं आपको बता दूंगा. Today we will be discussing lots of things. The first, let me take my word. Yes, finally we got it. The latter assuage the fear of most members. Good. Become, disarm, mollify. Great. Write down. Okay, so we will begin. Okay, so the meaning of assuage, to make bad things or situation less intense. Right, this is the exact meaning. People are started typing. Tone is negative. No. इसका जो टोन आएगा वो पॉजिटिव आएगा. राइट, यही मैं आप लोगों से पूछने वाला था. ओके, कि इसका टोन कैसा रहेगा. आप लोग खुद सोच एक बार के लिए रियलाइज करो कि इसका जो मीनिंग होता है ना, ठीक है, वो होता है कि टू मेक बैड थिंग्स और सिचुएशन लेस इंटेंस, यानी कि जो बुरे हालात हैं, जो बुरी सिचुएशन है, उसको कम कर देना. तो ऑब्वियस बात है इसकी जो टोन आएगी दैट वुड बी पॉजिटिव टोन. ठीक है, हो सकता है आपके दिमाग में आया होगा कि किसी चीज को लेस इंटेंस कर देना. ठीक है, तो वहां पे आपने सोचा होगा नेगेटिव होगा. वी विल डिस्कस. ठीक है, आपका जो डाउट आया कि इसकी टोन नेगेटिव आप लोगों ने लिखा है, क्यों नेगेटिव आपके दिमाग में थॉट आया, हो सकता है सिनोनिम्स को देख के आया हो. वी विल डिस्कस. ओके, एग्जैक्टली. यस. एन अपॉर्चुनिटी अकर टू एस्टरेज हर डिजायर फॉर नॉलेज. ठीक है, यहाँ पे जो अकर टू एस्टरेज हर डिजायर टू नो फॉर नॉलेज. यस, यू कुड यूज दिस वन. ओके, सिनोनिम्स क्या है? काम, रिलीव, एलिविएट, मिटिगेट, डैम्पन, सप्रेस, अबेट, ट्रैंक्विलाइज. राइट, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स. और भी सिनोनिम्स हैं, आप लोगों ने ऑलमोस्ट यही लिखे. कुछ एक दो और ज्यादा अगर यदि हो तो जस्ट टाइप डाउन इनटू द कमेंट. आप लोगों ने कुछ और लिखा है तो मुझे बताइए. और द सेंटेंस व्हाट आई हैव मेड, सिंस पीपल हैड नॉट फॉलोड गवर्नमेंट गाइडलाइंस वी फेल टू assuage the impacts of corona. What exactly happened? Right, government made the guidelines but we didn't follow, and finally what exactly happened? We couldn't control the impact of corona. कोरोना जिस तेजी से फैला, हम लोग उसको कम नहीं कर पाए. रीजन क्या था? वी डिडंट फॉलो द गवर्नमेंट गाइडलाइंस. जितना सोशल डिस्टेंसिंग था वो हम लोगों ने फॉलो नहीं किया. नाउ लुक एट द टुडे सिनेरियो. क्या चल रहा है? ठीक है, तेजी से फैल रहा है कोरोना. रीजन क्या है? हम लोग उसके इम्पैक्ट को नहीं सप्रेस कर पाए, नहीं दबा पाए. तो ऑब्वियस बात है, जो असुएज किसी चीज को, बुरी चीज को दबाना, राइट, टू मेक इट लेस इंटेंसिफाई, तो वहां पे क्या वर्ड यूज होता है? एसुएज. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पे एक वर्ड और सिनोनिम आप लोगों ने देखा होगा. द वर्ड हियर इज अबेट. ठीक है, ओके, लेट मी चेक. नो वॉइस. पुष्पेंद्र, प्लीज चेक इट फ्रॉम योर एंड. ठीक है, आपको आवाज सही आ रही है, नहीं आ रही? If you can hear me, please type yes. I am asking to all of you. Okay, one person typed here.
यस यस, सही है सही है पुष्पेंद्र, आप एक बार के लिए चेक कर लीजिए अपना सिस्टम, ठीक है, ग्रेट। सो द वर्ड हियर इज दैट इज assuage, एक्सीलेंट वर्ड, यू कुड यूज इट। अब बात आती है यहाँ पे कुछ वर्ड्स और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एक सिनोनिम और है सप्रेस। अब सप्रेस का जो मतलब आता है ना, सप्रेस की जो टोन है, ऑब्वियस बात है, सप्रेस का मतलब क्या होता है, सिंपल बात होता है कि किसी भी चीज को लेस इंटेंस करना। तो अब सप्रेस की जो टोन आती है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। सप्रेस का मतलब क्या होता है, सपोज if we go to our childhood, in childhood we had lots of dreams, right? We wanted to become a pilot, we wanted to do these things, जो भी सारी की सारी चीजें होती हैं, but finally क्या हो गया था, all these things suppressed, ठीक है, ड्यू टू लॉट्स ऑफ कंडीशन, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कैसा भी प्रेशर हो। तो वहां पे जो टोन आया है सप्रेस का, वो कैसा टोन है, नेगेटिव का। तो वहां पे आप उसको एसओएज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एसओएज की जो टोन होती है वो पॉजिटिव होती है। यू कुड गो विद द सप्रेस, आप यूज कर सकते हो। यू कुड यूज द वर्ड अबेट एज वेल। अबेट जो वर्ड है, वी ऑलरेडी, आई थिंक वी डिस्कस दिस वर्ड अबेट प्रीवियस क्लास में, कभी डिस्कस हुआ है वर्ड? इफ यस प्लीज टाइप यस। देखो ये वाला वर्ड डिस्कस हुआ है, मैंने आपको बोला ना, अब ये वर्ड्स धीरे धीरे ऐसे ही आप लोगों के आने लग जाएंगे। और अबेट को, ठीक है, अबेट में आप लोग यूज कर सकते हो कि हम लोगों ने कोई एग्जांपल लिया, सपोज यू हैव लॉट्स ऑफ एस्पिरेशंस, यू हैव लॉट्स ऑफ एम्बिशंस, आपकी बहुत सारी एम्बिशंस है और आप लोग वर्क भी कर रहे हो, राइट? सो नो वन विल अबेट योर एम्बिशंस, रीजन बीइंग यू आर पुटिंग इन सो मच एफर्ट्स। अब का मतलब क्या हुआ, आपकी जितनी एम्बिशंस है, जो भी आपकी एस्पिरेशंस है, राइट, nobody will be able to abate them, यानी वो उनको सप्रेस नहीं कर सकता, वो उनको दबा नहीं सकता। तो वहां पे जो अबेट की टोन कैसी है, ऑब्वियसली नेगेटिव है। लेकिन सिनोनिम्स, मैंने आपको पहले हमेशा बोला है कि सिनोनिम्स जरूरी नहीं है कि हर जगह एक वर्ड को रिप्लेस कर सके। सो एसओएस की जो टोन आएगी, दैट वुड बी positive only. Okay, the sentence what I made, that is related to the corona. You guys made have lots of sentences, अधिकतर sentences positive tone के हिसाब से आए हैं। Okay, the person who asked कि सर इसकी टोन नेगेटिव है, if it is clear please type yes. Abate means become less intense. Yes Imran, we discussed this word. Okay, good. Okay, I just wanted to write couple of sentences where the person committed some mistakes जो मुझे डिस्कस करना था। चलिए, आई जस्ट गॉट लॉट्स ऑफ कमेंट्स, तो हो सकता है मिलने में थोड़ा दिक्कत आए। हाँ, ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये आप लोगों की गलतियां होती है, ठीक है, और इसको लेके आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, ठीक है, क्योंकि बोलते वक्त भी ये गलती होगी। वन पर्सन रोड दिस सेंटेंस, पीएम मोदी स्पीच टू कंट्री assuage द फियर ऑफ मोस्ट इंडियन पीपल, ठीक है, ये गलती नहीं करना है। रेस्ट सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई गलती नहीं है। पीपल्स जैसी चीज ये नहीं होना चाहिए, पीपल्स हो गया, चिल्ड्रंस हो गया, ऐसे वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, गुड। कनेक्शन प्रॉब्लम आप चेक कीजिए सर अपना सिस्टम एक बार के लिए, ठीक है महेश, गुड। सो day before yesterday, or I think yesterday only, we received one message from one of our attendees, right? And she was asking that she got confused between the word of in time and on time. देखो मैंने आप लोगों को क्या चीजें बताया, हो सकता है राइट, she might have missed that particular session, हो सकता है आप लोगों ने कोर्स लेट ज्वाइन किया हो या कैसा हो गया हो, बट दैट्स आवर प्रॉमिस की सारी चीजें, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं आने वाला, कोर्स में हम लोग सारी की सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। अब जैसे आप लोग के डाउट आया कि सर वेयर डू वी यूज इन टाइम एंड ऑन टाइम, वी ऑलरेडी कवर्ड दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन आवर सेशन एंड शी माइट हैव मिस्ड इट, लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है। यहाँ पे चीजें शुरू होती हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। व्हाट आई सेड, शी माइट हैव मिस्ड, शी माइट हैव स्किप्ड, राइट, शी माइट हैव फॉरगॉटन, सारी की सारी चीजें कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। बट यहाँ पे मैं स्किप, मिस और फॉरगेट वाली की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यूज ऑफ माइट, ठीक है। लिसन इट वेरी केयरफुली, व्हाई डिड आई यूज द वर्ड माइट हैव, ठीक है। आई कुड हैव यूज्ड मे हैव, आई कुड हैव यूज्ड मस्ट हैव, आई कुड हैव यूज्ड माइट हैव, लेकिन आई वेंट विद द might have only. I had two options. मैं may have से भी जा सकता था, मैं must have से भी जा सकता था, लेकिन मैंने क्या चूज किया, वर्ड might have. And how did I choose this word? Subconsciously. मैंने आप लोगों को may have, might have और must have का यूज भी पढ़ाया। उस टाइम पे मैंने बोला था कि जहाँ पे जिन लोगों ने एक बार के लिए आप स्किप भी कर दिया है, आप लोग वापस सुन लीजिए, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, ठीक है। और ये चीजें आप लोगों की डेली लाइफ में आएंगी, जैसे अभी आ गया मेरे, ठीक है। आई वांटेड टू कम्युनिकेट दिस थिंग, और यहाँ पे मैंने सबकॉन्शियसली क्या यूज किया, माइट हैव। अब लिसन द कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग से विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट क्या निकला, शी माइट हैव मिस्ड, शी माइट हैव स्किप्ड, शी मस्ट माइट हैव फॉरगॉटन। ये सारी की सारी चीजें तीनों में से जो मन का है हम बोल सकते हैं, राइट।
मेरे को स्किप फॉरगेट और उस पे नहीं जाना, मेरे को पकड़ना है वर्ड माइट हैव। अब हुआ क्या, यहाँ पे आप लोगों से जब मैंने आप लोगों को बताया था कि यूज ऑफ मे हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म एंड माइट हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म क्या होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी इन पास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी इन पास्ट कुछ भी हुई हो, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन 95 to 100%, we go with the must have plus action third form. If there is a possibility of 50%, we use may have plus action third form. If there is a possibility of 0 to 5%, we use the word might have. ओके अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, शी माइट हैव मिस्ड इट, शी माइट हैव मिस्ड इट, यानी कि मैंने इनको किस कैटेगरी में डाला कि हो सकता है कि आपसे मिस हो गया हो। श्योर तो मैं अभी भी नहीं हूं, ठीक है, श्योर तो हम मस्ट हैव में भी नहीं होते, लेकिन यहाँ पे श्योरिटी किस बात, यहाँ पे मैंने अपने आप को इंश्योर करने के लिए क्या यूज किया, यहाँ पे यूज किया माइट हैव। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, यहाँ पे ध्यान रखना ऑफिस पॉलिटिक्स में भी यही चीजें होती हैं, आप लोग कहीं पे भी जा रहे हैं आपके कम्युनिकेशन में ये चीजें मैटर करती है, ध्यान रखना। If you talk about the sentence formation, if you talk about the grammar of all these three sentences are absolutely correct. She might have missed it, she must have missed it, or she may have missed it. All these three sentences are absolutely correct. यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर इंग्लिश का रोल नहीं है, कम्युनिकेशन के अंदर जो रोल किस बात का आता है, हाउ डू यू चूज योर वर्ड्स। मैं बार बार आप लोगों को इसी चीज पे जोड़ देता हूं, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड, चॉइस ऑफ वोकैबुलरी, ये चीजें मैटर करती है। ठीक है, आप किस तरीके से कम्युनिकेट लोगों से करते हो। मैं बार बार आप लोगों को इस चीज पे क्यों फोकस कर रहा हूं, शी माइट हैव, क्यों। अब एक बात बताइए, ठीक है, मुझे कितना टाइम लगेगा, मुझे 5 या 6 मिनट के अंदर मैं पूरा का पूरा बता दूंगा इन टू और ऑन टू, इन टाइम और ऑन टाइम के बारे में, ठीक है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे अगर यदि मैं मस्ट है बोलता, इन दैट केस राइट आई एम पॉइंटिंग आउट, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूं कि आपने पक्का ही पक्का वाला चैप्टर स्किप किया होगा, इसीलिए ठीक है यहाँ पे सामने वाले को यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू द अदर पर्सन। तो आपको हमेशा कम्युनिकेशन में ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर यदि मैं बोलता शी मस्ट हैव स्किप्ड इट, शी मस्ट हैव फॉरगॉटन, राइट, शी मस्ट हैव, ठीक है, जो भी आपको चीज बोलना है, चाहे स्किप बोलो चाहे फॉरगेट बोलो, ठीक है, इस चीजों में अगर मैं मस्ट हैव बोल देता, इन दैट केस आई एम पॉइंटिंग फिंगर राइट टुवर्ड्स हर कि पक्का ही आप लोगों ने वो चीज मिस करी है। बट इन ऑर्डर टू सेव माई सेल्फ, राइट, क्योंकि यार 5 या 10 मिनट में मैं पूरा रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन अगर मैं ये वर्ड यूज कर लूं कि शी मस्ट हैव मिस्ड, इन दैट केस ठीक है मैं रिलेशनशिप खराब कर रहा हूं। आप लोगों को ये चीजें याद करनी है कि ऑफिस में कहाँ पे चीज आपको मस्ट हैव बोलना है, कहाँ पे माइट हैव बोलना है, कहाँ पे मे हैव बोलना है। अब यहाँ पे बात आती है कि कितना टाइम लगता है इन टाइम और ऑन टाइम समझाने का। मैं अगर यदि ये चीज बोल के ये शो करता कि आपने पक्का ही वो चीज मिस करी होगी, इन दैट केस मैं क्या बोलता, शी मस्ट हैव। बट मैंने क्या बोला, मुझे कम्युनिकेशन पे अपने पे वर्क करना है, इसीलिए आई वेंट विद द वर्ड माइट हैव। इफ एवरीथिंग इज क्लियर प्लीज टाइप यस, फिर मैं इन टाइम और ऑन टाइम का एक बार आपको समझा दूंगा। गुड, गुड, ओके, ग्रेट ग्रेट। प्लीज चेक योर सिस्टम, राइट। Okay, sir, please repeat one more time this thing again, might have topic. Okay, Arti, I'm just repeating myself again. अगर यदि आपने ठीक है एक बार के लिए जब पुराना आप जब मे हैव माइट हैव मस्ट हैव पढ़ेंगे ना, देन थिंग्स वुड बी मोर क्लियर। मैं अभी आप लोगों को शॉर्ट में चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ कि इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन पास्ट, आपने कुछ एक्शन अगर यदि पास्ट में किया है बट आई एम नॉट श्योर, मुझे कोई गारंटी नहीं है कि हैव यू कंप्लीटेड दैट पर्टिकुलर एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज आती है। अगर 0 to 5% की पॉसिबिलिटी है कि मैं बिल्कुल ही श्योर नहीं हूं कि आपने किया ही है या नहीं किया, अगर किया होगा तो मैं क्या बोलूंगा, यू माइट हैव डन दिस थिंग, यानी कि पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में क्या चल रही है कि 0 to 5% पॉसिबिलिटी है कि वो आपने काम किया है। इफ आई टॉक अबाउट द 50%, आई गो विद द मे हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। और 100% मुझे पता है कि आपने वो काम किया ही है, इन दैट केस यू मस्ट हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। अब कोई भी काम करने का क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म, डू डिड डन, ऐसे करके आप कोई भी चीज का सेंटेंस बना सकते हो। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी होती है मे हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म, माइट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म प्लस और मस्ट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जब आप एक बार के लिए इसको लेक्चर्स को पूरा सुनेंगे ना, ठीक है, आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स को आप एक बार देखेंगे, यू विल गेट टू नो लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, राइट, आर कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर सेशन। But still, if you have any doubt, you could ask me after 10:30. I will give you other example as well. Okay. Now concentrate on the difference between on time and in time. Okay. Difference क्या होता है? You must have heard these things. ठीक है कि on time use करते हैं, कहाँ पे in time use करना है। अब two new messages.
सर प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आप एक बार के लिए क्वेश्चन वापस पूछिए, बहुत सारे क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं, राइट? आप लोग अगर आंसर्स नहीं मिलते सो जस्ट टाइप डाउन, आप लोग पूछते रहो, ठीक है सर? when resume making classes would happen, it will take some time, ठीक है विजय? रेज्यूमे मेकिंग का पूरा सेशन होगा, रेज्यूमे होगा, उसके अंदर हम लोग सीवी भी देखेंगे, वो डिपेंड करेगा आपका क्या क्या प्रोफेशन है, लेकिन आई विल गिव यू द कंप्लीट आइडिया अबाउट द रेज्यूमे, ठीक है? और दूसरा वाला सीवी के बारे में, मीनिंग ऑफ एलिवेट एंड मिटिगेट। एलिवेट और मिटिगेट का सेम सेंस होता है, ठीक है? आप सिनोनिम को यूज कर सकते हो, ठीक है? जस्ट सपोज कीजिए कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आप जैसे आप रोड क्रॉस करते हो, ठीक है? रोड के लिए जो हम लोग मान के चले, इंडिया के अंदर जो पैटर्न चलता है, ठीक है? इंडिया में वी ड्राइव लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग जो अपनी गाड़ियां ड्राइव करते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव करते हैं, राइट हैंड साइड ड्राइव क्यों नहीं करते? ठीक है, अदरवाइज एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। सो इन ऑर्डर टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है, रिस्क को मिटिगेट करना यानी कम करना, ठीक है, तो वहां पे क्या वर्ड यूज हुआ? मिटिगेट। तो मिटिगेशन ऑफ रिस्क, अगर यदि मुझे अभी आपका प्रोफेशन नहीं पता कि आप किस प्रोफेशन से हैं, सपोज कीजिए आप हैं जॉब कर रही हैं कोई, सपोज कीजिए आप मैं लेके चलता हूँ आप एचआर के अंदर है, ठीक है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एचआर, ठीक है? और एचआर के अंदर अभी सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? सैलरी को लेकर इशू हो रहा है, ठीक है, लोगों की सैलरीज किसी को हाफ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पूरा का पूरा एम्प्लॉइज के अंदर कैसा माहौल हो रहा है? ठीक है, एक अनरेस्ट हो रहा है, ठीक है, एम्प्लॉइज गॉट डिसग्रंटल, एक और वर्ड याद आया, ठीक है, एक और वर्ड आप लोग के साथ शेयर करता हूं मैं, लेट मी राइट हियर, द वर्ड हियर इज दिस ग्रंटल। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि जबरदस्त प्रेशर में है, ठीक है, एंड एम्प्लॉइज राइट दे वांट टू रिटेलिएट, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो वर्ड यहाँ पे क्या आता है? डिसग्रंटल, ठीक है? अब आप उन चीजों को, ठीक है, इन सब चीजों को मिटिगेट करने के लिए, ताकि एट्रिशन ना हो, एम्प्लॉइज कम छोड़े, तो वहां पे इन ऑर्डर टू मिटिगेट द एट्रिशन, एट्रिशन अगर यदि सपोज कीजिए 1% का भी हो जाता है, सो हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल? यू, बिकॉज एज एन एचआर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मिटिगेट द एट्रिशन, उसको कम करना। तो यहाँ पे वर्ड क्या आ जाता है? मिटिगेट। लेकिन लोगों में गुस्सा है, उसको कम करने के लिए आप क्या बोल सकते हो? वहां पे वर्ड मिटिगेट यूज नहीं करोगे, वहां पे क्या वर्ड यूज करोगे? एस्वेज। बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, इन ऑर्डर टू एस्वेज द डिस्कंटल, ठीक है, बहुत सही वर्ड है, ठीक है, जो दिमाग में आया। डिस्कंटल को आप इससे लिंक मत करें, डिस्कंटल का मतलब क्या होता है? हाईली डिससेटिस्फाइड, एंग्री। एंग्री की टोन अगर ये है ना, तो डिस्कंटल की टोन ये है, ठीक है? इस लेवल पे आपको ये सब चीजें याद रखनी है। अब बात आती है, देखो अभी इसका कम्युनिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, अब बात आती है कि डिसग्रंटल वर्ड, आई एम गिविंग यू द रियल लाइफ एग्जांपल। अभी मुझे नहीं पता था कि 2020 में, ठीक है, 20 past 9 पे, ठीक है, 24th ऑफ जून में somebody will ask the meaning कि सर इसे रिपीट कर दो। कोई, मुझे नहीं पता था इतने सालों में कोई एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें कोई एक ये चीज बोलेगा, उसके बाद मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक वर्ड आएगा डिसग्रंटल, ठीक है? नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल दैट हाउ डिड आई कम टू नो अबाउट दिस वर्ड। इट वाज इन 2006 और 7, ठीक है, 2006 और 7 की बात है। आई वाज रीडिंग वन बुक, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं मारुति सुजुकी जो कंपनी थी, उस टाइम पे गुड़गांव के अंदर बहुत ज्यादा इशू हुआ था। वहां पे बकायदा एक कंपनी का जो ये था एचआर था या फिर कोई उन्हीं का जो कंपनी का जो ऑफिसर था, उसको बकायदा एम्प्लॉइज ने सिंपली, ठीक है, इतना ज्यादा ब्रूटली मारा था कि ही सिंपली सकम टू द इंजरी, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी। तो वो जो एम्प्लॉइज का जो पूरा का पूरा गुस्सा था, वो उस मैगजीन में वर्ड लिखा हुआ था डिसग्रंटल, ठीक है? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट दैट हैपेंड इन 2006 और 7। आप गूगल पे भी सर्च कर लेना कि मारुति के अंदर, गुड़गांव के अंदर जो उनका मानेसर में यहाँ पे जहाँ पे वहाँ पे इशू हुआ था। सो द मैगजीन कवर्ड दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। 2006 और 7 की बात है, या हो सकता है 2008 की बात हो, उससे पहले की बात नहीं है। सो राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 12 years। अब ये वाला वर्ड, ठीक है, मैंने पूरा का पूरा मैगजीन पढ़ा था, उससे मेरे दिमाग में ये वर्ड आया था। अब मैंने कभी ना तो इसको डिक्शनरी देखा, बस कैसे कैसे पढ़ते पढ़ते इन चीजों को, फिर ये वर्ड और कहीं कहीं दिखता चले गया, और आज ये वर्ड अपने आप यूज आ गया। आई एम नॉट श्योर कि इन दीज 12 years और 13 years आई डिड यूज दिस वर्ड, कभी यूज किया भी या नहीं किया, आज एकदम से ये वर्ड सबकॉन्शियसली दिमाग में आया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से याद करो। मुझे इस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट आज 12-13 साल के बाद भी याद है। तो आप अगर यदि एक स्टोरी बना लोगे ना, ठीक है, ना तो आपको टेंसेस की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको वोकैबुलरी के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा। ऑलवेज गिव अ पर्टिकुलर वर्ड अ सेंटेंस, ठीक है, उसके ऊपर एक सेंटेंस बना लो, क्रिएट द स्टोरी। एसयूएस के ऊपर अभी आज हम लोगों ने कौन सा डिस्कशन किया? एक एचआर का डिस्कशन आ गया। अभी कोरोना कोविड चल ही रहा है, उसमें क्या आ गया? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना, राइट? तो यहाँ पे रिड्यूस इम्पैक्ट के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? एसयूएच, ठीक है, गुड। इफ इट इज क्लियर, ठीक है, द पर्सन हु आस्क्ड दैट मीनिंग, ठीक है, श्वेता, इफ इट इज क्लियर प्लीज टाइप यस, ओके।
alleviate or mitigate. Great. So we were discussing about the difference between in time and on time में difference क्या होता है. देखो, when we are talking about some responsibility, जहाँ पे कोई responsibility आ जाती है, ठीक है, जहाँ पे कोई fixed time frame आ गया, in that case we always go with the on time. आप लोगों ने यू मस्ट हैव हर्ड दिस थिंग कि जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हो या फिर ट्रेन पे भी जाते हो तो वहां पे एक आता है, राइट, फ्लाइट इज ऑन टाइम, राइट, ट्रेन इज ऑन टाइम, क्योंकि उसका जो डिपार्चर टाइम है. राकी, यू नीड नॉट टू रेज योर हैंड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सिंपली पुट इनटू द चैट बॉक्स. आप सिंपल चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस वो सिर्फ हम ही लोग देख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल चैट बॉक्स में डालिएगा. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इन टाइम और ऑन टाइम. इन टाइम में क्या आता है, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है, कोई फिक्स टाइम पे, ठीक है. यहाँ पे ट्रेन के लिए कभी ये नहीं बोला जाता कि ट्रेन इज इन टाइम, फ्लाइट इज इन टाइम. रीजन क्या है, डिपार्चर टाइम 9 बजे है तो वो 9 बजे ही निकलेगी, उससे पहले और उससे बाद ऐसा थोड़ी ना होता है 9 बजे का टाइम और ट्रेन पहले निकल गई. तो जो टाइम से पहले की बात आती है दैट इज कंसीडर्ड इज इन टाइम. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट टाइम, वी ऑलवेज गो विद द ऑन टाइम. लेट मी गिव अनदर एग्जांपल. सपोज कीजिए आपके ऑफिस का टाइम है, ऑफिस टाइमिंग कितने बजे का होता है, 10 AM का, 9:30 का, 9 o'clock का, जो भी आपका टाइम है, राइट. सो यू हैव टू रीच टू योर ऑफिस, राइट, ऑन टाइम. 9 बजे पहुंचना ही है. बहुत कम लोग होते हैं जो इन टाइम पहुंचते हैं. कौन जाता है, जो टाइम है उसी टाइम पे हम लोग पहुंचते हैं. तो वहां पे व्हाट वी यूज द वर्ड ऑन टाइम बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट टाइम जिस टाइम पे ऑफिस शुरू होता है. बट जस्ट एक एग्जांपल ऑफ मुंबई पीपल, राइट, दे हैव टू ट्रेवल. वहां पे तो 1.5-2 घंटे का तो कम्यूट आवर्स ही निकल जाते हैं. 1.5-2 घंटे सुबह, 1.5-2 घंटे शाम. तो वहां पे अगर ये 1.5-2 घंटे का टाइम है और ऑफिस टाइमिंग अगर आपका सपोज कीजिए 10 o'clock है, इन दैट केस दे हैव टू लीव देयर होम अराउंड 7:30 और 7 बजे निकल जाना पड़ता है कई लोगों को. तो उसके बाद भी दे गेट लेट, राइट, एंड दे हार्डली रीच ऑन टाइम. क्यों, 9 बजे का टाइम होता है, 9:30 बज जाते हैं कभी कभार, तो वहां पे वो लोग कभी टाइम पे नहीं पहुंच पाते. जस्ट एक आर एग्जांपल, वी ऑलवेज राइट ट्राई टू आवर वेबिनार ऑन टाइम, राइट. 9 o'clock पे हम लोग शुरू करते हैं. समटाइम्स इट गेट्स डिलेड, किसी का जूम आईडी में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहां पे क्या वर्ड आ रहा है यहाँ पे 9 o'clock का, बिकॉज वी आर कमिटेड, राइट. इट इज आवर लायबिलिटी, इट इज आवर ऑब्लिगेशन. तो जहां पे जब ऐसी वाली चीजें आती है वी ऑलवेज गो विद द वर्ड ऑन टाइम. लेट अस डिस्कस अबाउट द इन टाइम. सपोज कीजिए आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और आपका कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, यू हैव टू सबमिट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और आपका टाइमिंग कितने बजे का है, 6 बजे तक तो आपको ऑफिस निकलना ही है. योर मैनेजर सिंपली ईमेल्ड यू कि ये वाला वर्क हो जाना चाहिए इन टाइम, क्योंकि उन्हें पता है कि 6 बजे तो यू विल लीव द ऑफिस. इन दैट केस यू आर सपोज टू कंप्लीट दैट वर्क इन टाइम. 6 बजे से पहले पहले की बात आ रहेगी. देयर इज अ डेडलाइन, ठीक है. जब भी इफ देयर इज अ डेडलाइन इज गिवन वी ऑलवेज गो विद द वर्ड इन टाइम. फ्लाइट के लिए कोई डेडलाइन जैसा चीज थोड़ी ना होता है, ठीक है, तो वहां पे वर्ड क्या यूज होता है, इन टाइम. और कोई हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज कीजिए कि बात करें, वी ऑलवेज ट्राई टू फिनिश आवर लेक्चर, वी ऑलवेज ट्राई टू फिनिश आवर वेबिनार इन टाइम, राइट. आई ऑलवेज ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं पूरा का पूरा जो वेबिनार है, सेशन है, वो इन टाइम फिनिश कर दूं. उसके बाद वी विल टेक द प्रॉब्लम. सो इन टाइम क्या है, देयर इज अ डेडलाइन ऑफ 10:30, राइट. 10:30 का डेडलाइन है कि मैं लेक्चर कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आई विल टेक दी क्वेरीज और जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस है. तो जहां जहां पे डेडलाइन आ जाएगा वी ऑलवेज गो विद द इन टाइम. इफ एवरीथिंग इज क्लियर प्लीज टाइप यस. Yes, before deadline it always go with the in time. Yes, good. Okay, and just try to find out lots of other examples, then you will get to know कि जहां पे भी हम लोग बात करते हैं किसी टाइम फ्रेम के अंदर अंदर, राइट, हमेशा हम लोग बात करते हैं इन टाइम के लिए, ठीक है. और अगर ये मैं और एग्जांपल्स लेने की बात करूं, जस्ट एक एग्जांपल ऑफ दिस न्यूज, आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज फेक और अभी रियल है, ठीक है. पतंजलि क्लेम्स कि दे हैव मेड अप विद दिस वैक्सीन जो कोरोना का उन लोगों ने बनाया है. अगर यदि राइट इफ दिस थिंग गेट सक्सेसफुल, इन दैट केस कोरोना का जो मेडिसिन और जो वैक्सीन है, राइट, इट केम इन टाइम, इट केम इन टाइम. अब यहाँ पे ऑन टाइम थोड़ी ना है, क्योंकि कोरोना का सीजन अभी भी चल रहा है, ठीक है. पीपल आर स्टिल थ्राइविंग टू गेट द वैक्सीन, उसके बारे में वैक्सीन उसका मिल जाए. तो वहां पे क्या बात आ रहा है, ये पूरा का पूरा सेशन चल रहा है. बहुत अच्छा वर्ड अभी यानी कि एग्जांपल याद आ गया इन टाइम का, कि कोरोना का कल ही ऐसी खबर उठी है कि मार्केट में पतंजलि क्लेम्ड कि बन जाएगा. तो ये पूरा का पूरा एक डेडलाइन है. तो यहाँ पे इफ एवरीथिंग गोज फाइन, in that case Patanjali became successful to launch that particular vaccine in time, क्योंकि अभी कोरोना का सीजन चल रहा है. अब उसके बारे में किसी को सपना थोड़ी ना आएगा कि कोरोना कब शुरू होगा, उस टाइम पे मेडिसिन ऑन टाइम जैसी चीज यूज नहीं होगा, राइट. ओके. My junior never come
ऑन टाइम, माय जूनियर नेवर कम्स आएगा, ओके अमित, ठीक है, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट योर जूनियर, जूनियर इज सिंगुलर, तो वहां पे क्या यूज होता है, एस और ईएस का, ओके। ड्यू टू हैवी कनेक्शन प्रॉब्लम, नो इशू महेश, आप लोग ट्राई करो, जो भी आपकी कनेक्शन की प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है, तो आप जितना भी हो सके आप अटेंड करो, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग तो वैसे ही मिल ही जाएगा लेक्चर का, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं रिकॉर्डिंग आप सोचो कि आप रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, ओके। ओके सर, वन का क्या आप प्रोनाउंसिएशन और क्या करी हिंदी में भी लिख सकते हैं, देखो आप हिंदी को जितना हो सके ना आप अवॉइड करने का कोशिश करो, रीजन क्या होता है, व्हेनेवर आई स्पीक समथिंग, ठीक है, आपके दिमाग में वो चीजें जानी चाहिए, यू हैव टू लिसन इट, ठीक है, आपको हियर नहीं करना, आप लिसन करो, ठीक है, जो बोला, अरे सर मैं इतनी चीजें करूंगी उसके बाद कैसे होगा, अरे यू विल गेट द रिकॉर्डिंग एज वेल, बार बार सुनो, 20-20 बार सुनो, ठीक है, जस्ट पुट दैट वर्ड इनटू द गूगल, ठीक है, उसको सुनो, कंटिन्यू प्रेस करते जाओ, ठीक है, ये हिंदी वाली चीजें यू हैव टू लिव इट, ओके। Sir, do you know Gujarati? No, sorry, sir. I can speak only 2 languages. Okay, great. So I just gave you the idea about the in time or on time. Okay, good, good, good. Avoid हिंदी वाली चीजें आप यूज मत करो, नहीं तो फिर वो प्रोनाउंसिएशन को कैसे लिख देंगे वाली चीजों को. Okay, great. So today we will be discussing an important session. ठीक है, कि सबसे बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, ध्यान रखना, आज हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, हम लोग थोड़ा जो हम लोग बात करेंगे आज प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे प्रोफेशनल चीजों में वी हैव टू प्ले विद द वर्ड्स। तो उससे पहले जो आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट, दैट इज व्हाट्स योर नेम। सर व्हाट डज इट मीन, व्हाट्स योर नेम, इसका मतलब क्या होता है? मुझे हमारा नाम पता है, आपका नाम सब कुछ पता है, लेकिन आज का जो हम लोग सेशन लेंगे, राइट, वी विल बी डिस्कसिंग दैट हाउ यू कैन रिमेंबर नेम ऑफ पीपल। आप लोग कहीं पे भी जाते हैं, सपोज कीजिए आप कोई इवेंट में जा रहे हैं, आप किसी सोसाइटी के अंदर है, सोशल गैदरिंग कर रहे हैं, या फिर आप लोग की कोई भी मीटिंग हो रही है, नेटवर्किंग इवेंट हो रहे हैं, राइट, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ पीपल। इट इज माइटी एसेंशियल, बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही चीज होती है, राइट, वी ऑलवेज अवॉइड। रिमेंबरिंग नेम इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग्स एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। आप लोगों ने फेस किया होगा, आप लोगों को भी नाम याद रखने में दिक्कत होती होगी। इफ यू फाउंड द सेम इशू, प्लीज टाइप यस, 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 ओके। It happens, it happens. I just want to know, सबसे बड़ी बात, रीजन क्या है इसका? You will tell me the reason. आज हम लोग डिस्कस यही करेंगे। I will give you the complete strategy and you can remember the name of people. ठीक है? Okay. Yes, मुस्तफिजुर. Good. Please tell me the reasons. क्यों हम लोगों को नाम याद नहीं होते? You meet lots of people. नेटवर्किंग इवेंट्स हैं, ध्यान रखना, बहुत चीजें जरूरी हैं इसकी। ठीक है? We generally overlook. ठीक है? Meet after long time. Okay. नो, सपोज कीजिए इफ यू आर इंटरेक्टिंग विद द पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, आज आप पहली बार मिल रहे हो, ठीक है, यू हैव अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन फॉर 10 to 15 मिनट्स, ठीक है, द पर्सन स्पोक अबाउट हिज हर नेम एज वेल, बट आफ्टर 10 or 15 मिनट ही कंप्लीटली फॉरगॉट। ठीक है, क्यों? वन पर्सन रोट मैनी पीपल, यस इट मे इशू बिकॉज वी ऑलवेज गेट ओवरवेल्म्ड, ठीक है, बाय इंटरेक्टिंग विद 15 or 20 पीपल। अरे इतने लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसा जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ ना, ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू, खास करके चाहे आपका ऑफिस है, ठीक है, नॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑन परफेक्टली, दैट मेक्स सेंस, ठीक है, स्पेलिंग पे थोड़ा वर्क करना है, ठीक है, स्पेलिंग कॉन्सेंट्रेशन का गलत है, लेकिन ऑब्वियसली राइट यू हिट द नेल। मेन बात यही आता है, मीट आफ्टर लॉन्ग टाइम। नहीं, मैं आपसे आज पहली बात कर रहा हूँ। सपोज इफ यू वेंट टू द पर्टिकुलर नेटवर्किंग इवेंट वेयर यू मेट एटलीस्ट 10 to 15 पीपल फॉर गुड 1 or 2 hours, ठीक है, 1 या 2 घंटे आप लोगों ने बात करा, 10 या 15 लोगों से अगर आप बातचीत कर रहे हो, राइट, 1 and 1.5 hour, right, it is more than sufficient to remember the name of all the people, right? Over excitement नहीं, over excitement तो नहीं होता, ठीक है, listen for the first time, no, ठीक है, I think everybody is not interested, anyone, yes, right, यही चीज आप लोगों के बोल रहे हैं, because we are not focused, right, हम लोगों का फोकस नहीं होता, right, we are into ourselves only, हम लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दिस इज द मेन रीजन वी मिस दैट अपॉर्चुनिटी। ध्यान रखना, नाम के कारण, ठीक है, बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा होता है अगर यदि आप लोगों का नाम याद होगा। आई विल शेयर यू माय एक्सपीरियंस व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद मी, बिकॉज नेम इज द ओनली थिंग, राइट, द पर्सन इज वेरी मच अटैच्ड टू। आप लोग खुद देख लीजिए, जब मैं आपको ईमेल राइटिंग की सेशन लूंगा उस टाइम पे भी मैं इस चीज को वापस रिपीट करूंगा कि कभी भी, राइट, अब ईमेल राइटिंग में तो ऑब्वियसली यू डोंट स्पीक, यू ओनली राइट, कभी भी भूल के भी, ठीक है, आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक मत करना किसी भी पर्सन का, द पर्सन हु इज द रेसिपिएंट, जिसको आप लोग ईमेल लिख रहे हो, द फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू, डियर एंड दैट पर्टिकुलर नेम,
क्योंकि लोग बहुत ज्यादा ऑफेंसिव फील करते हैं इफ यू यूज और इफ यू मिस प्रोनाउंस देयर नेम, बोलते वक्त अगर मिस प्रोनाउंस कर रहे हो, और इफ यू सिंपली रॉन्ग, इफ यू राइट द रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। आपकी मेल बॉडी कितनी भी अच्छी है, सब कुछ कितना भी अच्छा है, लेकिन अगर आपने उसके पर्सन की स्पेलिंग ही गलत लिखी है, ठीक है, फॉरगेट अबाउट ऑल दीज अदर थिंग्स, कभी कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए ऑलवेज पे क्लोज अटेंशन व्हाइल राइटिंग ईमेल। अब मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ बार बार, ध्यान रखना नेम्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर प्रॉपर नाउन। अब सपोज कीजिए मैं नाम लिख रहा हूँ, सपोज डियर महेश, अब इफ आई राइट द नेम महेश, अब महेश में क्या होगा ना कि उसके अंदर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑल दीज थिंग्स विल नेवर हेल्प यू। अब महेश में तो ऑब्वियसली रेड लाइन ही आएगा। तो आप लोगों को हमेशा क्रॉस चेक करना है, इसमें ना तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प करने वाला है, कोई नॉर्मल वर्ड होता है तो गूगल एंड ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू, लेकिन महेश जैसे नाम हो गए, या फिर सपोज कीजिए आपने अपने जिस भी पर्सन का आप नेम रख रहे हो, इफ यू डोंट फोकस अबाउट द स्पेलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड एंड इफ यू कमिट दिस मिस्टेक, doesn't matter whether your email body is perfectly fine, सब कुछ बढ़िया है, पिच आपने बिल्कुल परफेक्ट रखी है, कुछ भी नहीं होने वाला, राइट? इट ऑलवेज गिव्स द नेगेटिव सेंस दैट अ पर्सन डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ माय नेम। आप लोगों को खुद को बुरा लगता है, रीजन क्या होता है? दिस इज योर ओन आइडेंटिटी। इसीलिए नेवर प्रोनाउंस द मिस प्रोनाउंस द नेम। और अगर आप राइटिंग में बात कर रहे हो, ऑलवेज 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 राइट द राइट स्पेलिंग। जब मैं आपको ईमेल के कम्युनिकेशन में पूरी चीजें बताऊंगा तो आई विल गिव यू द कंप्लीट ब्लूप्रिंट कि कौन कौन सी चीजों को कहाँ कहाँ पे देखना है, उसके अंदर जो नेम की स्पेलिंग होती है, ठीक है, इट इज माइटी एसेंशियल। फॉरगेट अबाउट द अदर थिंग्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक आपने कुछ भी करी है, कुछ भी ऐसा लिखा है, ऑल दीज थिंग्स गो, वो चीजें चलती हैं। लेकिन अगर आपने पहली चीज में, फर्स्ट चीज, सबसे पहले तो आप ईमेल में नाम ही लिखते हो ना, सारी की चीज वही गलत आ गया तो चीजें बहुत हर्ट करती है सामने वाले बंदे को, चाहे आप अपना बिजनेस के लिए कर रहे हो, जॉब के लिए कर रहे हो, ऑल दीज थिंग्स आर सेकेंडरी। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस, बेनिफिट्स ऑफ रिमेंबरिंग नेम्स, राइट? द मेन थिंग इज दैट यू रिसीव मोर रिस्पेक्ट, ठीक है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दीज थिंग, इफ यू कॉल पर्सन बाय हिज और हर नेम, राइट, पर्सन ऑलवेज फील स्पेशल, राइट? हैव यू नोटिस दिस थिंग? प्लीज टाइप यस। Exactly, right? It happens. और हम लोग, when I go anywhere, first I recall the name and ask for others. Yes, especially in school. Good. It exactly happens. बस उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं? We never focus. कई बार तो होता है हमारे पास, we simply get overwhelmed by lots of information. बहुत सारी information आ जाती है, उसके चक्कर में भी हम लोग सोचते हैं यार, एक्चुअली क्या होता है, whenever we approach to someone, right, we always fix upon our agenda. हम लोग का फिक्स होता है, ठीक है? कम्युनिकेशन के अंदर जब मैं आपको पूरी 5 चीजें बताई थी, राइट? डज एनीबडी रिमेंबर व्हाट आर द 5 फैक्टर्स व्हिच मेक अ कम्युनिकेशन स्किल्स परफेक्ट? 5 फैक्टर्स कौन कौन से मैंने बताए थे? इफ एनीबडी रिमेंबर्स, प्लीज टाइप ऑल द 5 फैक्टर्स। राइट डाउन 1 2 3 4 5। कम्युनिकेशन स्किल्स का जब मैंने डेफिनेशन कंप्लीट किया था, राइट, और ये तो फर्स्ट लेक्चर में भी हुआ था, ठीक है? द पीपल हु आर ज्वाइनिंग टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, यू ऑलरेडी नो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने भी वेबिनार वाला अटेंड किया है जिसमें मैंने पूरा कम्युनिकेशन स्किल्स को डिफाइन किया है, राइट? वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है, देन नॉलेज, लिसन एंड, okay, good, empathy, good. One person wrote listen and second one wrote empathy, good. Quality, no, quality की बात, empathy, listen, good. Now people started responding, right? I gave the 5 factors जिससे communication skills पूरा बनता है, right? One is verbal communication, non-verbal, third one knowledge, fourth one listening and fifth one is empathy. मैंने आप लोगों को बोला था कि listening और empathy जो होता है, right, it comes with the experience. चाहे listening हो चाहे empathy हो, ये दोनों चीजें कैसे आती है? बाय एक्सपीरियंस। वर्बल आप अच्छा कर लोगे, नॉन वर्बल अच्छा कर लोगे, नॉलेज यू ऑलरेडी हैव, बट इफ यू टॉक अबाउट द लिसनिंग और एम्पैथी, ये राइट, ये चीजें आती हैं आपके एक्सपीरियंस के साथ। इसीलिए छोटे बच्चों की आदत होती है, दे नेवर लिसन, दे ओनली स्पीक। और हम लोग जो बड़े होते जाते हैं ना, वी आर वायर्ड लाइक दिस, वी ऑलवेज फिक्स आवर एजेंडा, मुझे बातचीत क्या करनी है, वी नेवर केयर। रीजन क्या आता है? वी आर नॉट अ गुड लिसनर। इसीलिए हम लोग कभी किसी का नाम याद नहीं कर पाते। इवन इन स्कूल वी फॉरगेट स्टूडेंट्स नेम, ही शी मेक्स स्पेस। गुड, 1 person wrote this thing. आप लोग खुद देख लीजिए, राइट, कि क्या क्या चैलेंजेस लोगों को आते हैं, राइट? इवन इन स्कूल one person wrote this, even in school if you forget student's name, he she makes face, right? It happens, होता ही है, सबको बुरा लगता है अगर आप किसी का नाम गलत बोलते हैं या फिर अगर आप मिसप्रोनाउंस करते हैं या फिर आप भूल जाते हो। ओके, सो बात आती है इसकी बेनिफिट्स क्या है रिमेंबरिंग नेम। द मेन थिंग इज रिसीव मोर रिक्वेस्ट,
रिलेशनशिप बिल्ड होती है। अगर आप सपोज कीजिए, आई एम गिविंग यू द रियल लाइफ एग्जांपल्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस विद मी, ठीक है, मेरे साथ ये सारी की सारी चीजें क्या क्या अभी इंसिडेंट होता है, और जनरली आप लोग भी अगर इस चीज को फॉलो करोगे तो यू विल लेवरेज दिस टेक्निक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दूसरा, करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। रीजन क्या है, जब आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो प्रायोरिटी आपको हमेशा मिलेगी एज कंपेयर टू अदर्स, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस ग्रोथ हो, राइट। सो यू विल बिल्ड अप द रिलेशंस, तो रिलेशन बिल्ड हो जाएगा तो करियर अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे आप सेल्स में हो, चाहे एचआर में हो, राइट, पीपल विल रिमेंबर यू। जहां पे जो दूसरे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ किससे फोकस कर रहे हैं, राइट, दे आर प्रीटी फोकस अबाउट देयर ओनली वर्क, इन दैट केस, राइट, रिमेंबरिंग नेम्स, राइट, दे प्ले अ वाइटल रोल। ओके, लेट मी शेयर यू द इंसिडेंट। लेवरेज करना, गुड, ठीक है, आई यूज द वर्ड लेवरेज। अब लेवरेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को, सपोज कीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि अभी कोरोना और कोविड के चक्कर में क्या हो रहा है, वी आर लैकिंग इन सैनिटाइजर, राइट, मास्क N95 का इशू आ रहा है और सैनिटाइजर्स का आ रहा है। सो कंपनीज, राइट, जस्ट लाइक डेटॉल है, सेवलॉन, ये जितनी भी कंपनीज हैं, दे आर लेवरेजिंग दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। और वो लोग क्या करें, दे स्टार्टेड प्रोडक्शन इनटू द मास। अब मास में प्रोडक्शन हो रहा है सैनिटाइजर्स का, इन सब चीजों का, पता नहीं कितने स्टार्टअप्स खुल गए, राइट। और व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग मास्क। So ultimately what they are doing, they are leveraging this opportunity. तो वहां पे वर्ड क्या यूज होता है, leverage. Once you become a great communicator, in that case you will leverage your skill of communication. तो वहां पे वर्ड क्या आता है उसका, leverage. Okay. Encashing the opportunity, yes, you could use the word, but encash थोड़ा सा नेगेटिव आता है, ठीक है। encash अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात करोगे, आप यू कह सकते हो कि वन पर्सन रोड कि सर लेवरेज, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, लेवरेज का मीनिंग, वन पर्सन आर द सेम मीनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इनकैश की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, राइट, टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो यहाँ पे वर्ड क्या हो गया, इनकैश। अब ये वर्ड कैसे आया, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, बट यहाँ पे आपने क्या बोला कि टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इनकैशिंग हमेशा नेगेटिव नहीं होता, ओके। बट लेवरेज का एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है। ओके, वन पर्सन वाज आस्किंग कि सर आप जो वर्ड है उसका हिंदी में, देखो ये सिचुएशन मेरे साथ हुआ, वन पर्सन आस्क्ड द मीनिंग ऑफ लेवरेज, राइट, आई डिडंट नो द एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग। तो ये चीजें आप लोगों के साथ भी होंगी जब आपको कोई हिंदी का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिलेगा, बट आई गिव द एग्जांपल। ऐसे ही चीजें आप लोगों को कम्युनिकेशन में होगा। मैंने कभी लेवरेज का मीनिंग कभी डिक्शनरी में नहीं देखा, ऐसे ही आप लोग अगर यदि एक वर्ड को आप 5 या 10 जगह देख लोगे, आपको वर्ड याद हो जाएगा, यू वोंट रिक्वायर एनी हिंदी और दैट पर्टिकुलर मीनिंग। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे जो इसका रिमेम्बरिंग नेम्स, हाउ ऑल दीज थिंग्स बेनिफिट यू। आई गिव यू एन एग्जांपल, लास्ट ईयर, राइट, आई वेंट टू मुंबई, राइट, आई बुक्ड माय होटल, आई वेंट देयर। अब वहां पे क्या हुआ था, द पर्सन, राइट, who was into the guest service associate, right, I actually what I did, I called him by his name, ठीक है। इन लोगों के यहाँ पे जितने कॉलर होते हैं, यहाँ पे ब्लेजर होता है, वहाँ पे नाम लिखा रहता है, राइट, I called by his name, ठीक है। I had a great conversation for 5 or 10 minutes, ठीक है, and then I went to the lobby because वो उनको पूरा का पूरा अपना प्रोसेसिंग कर रहे थे सारी, ठीक है। इसलिए simply I was taking coffee उस टाइम पे लॉबी में बैठ के, then that guy came, and what exactly he did, sir your room has been upgraded। अब मुझे एक बात बताओ, उसने सिर्फ मेरा 5 या 10 मिनट का बात था, आई कॉल्ड हिम बाय हिज नेम, ठीक है, 5 या 10 मिनट का कॉन्वर्सेशन में व्हाट एग्जैक्टली ही डिड, ही सिंपली अपग्रेडेड माय रूम, ठीक है। अब जहां पे ऑब्वियस बात है, उसको अपनी जेब से तो पैसा नहीं देना था, ठीक है, दे हैव सम लिबर्टी की जो वो लोग खुद कर सकते हैं, बट व्हाई ही डिड इट विद मी, ठीक है, मेरे साथ ही तो क्यों किया, क्या रीजन क्या था, ठीक है। आई प्लेड दिस स्ट्रेटेजी। और दूसरा, मुझे कोई अपग्रेड तो ना करना था, आई हैड नो आइडिया, ठीक है, ओनली क्योंकि क्लाइंट का मीटिंग था, दे बुक्ड माय रूम, ऑल दीज थिंग्स, आई सिंपली वेंट देयर। अब वहां पे क्या हुआ था, विद इन 5 or 10 minutes he simply upgraded my room, but why, रीजन क्या था, I played with a conversation for 5 or 10 minutes, I used his name। ध्यान रखना, people always feel special। ये सारी की सारी चीज तो क्या हुआ, सिंपल तुरंत आपको बेनिफिट मिल गया, ठीक है। और जहां पे अपग्रेड रूम करने का, अपग्रेड का भी अगर आप लेके चले होते हैं, ठीक है, तो उस रूम की अगर मैं कॉस्टिंग लेके चलूं तो 5 to 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पे वो अपग्रेड रूम मिलता। वो और किसी को भी दे सकता था, ऑब्वियस बात है कि 5 to 6,000 रुपीज उसने अपनी जेब से तो ना पे किए, लेकिन व्हाई डिड ही गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, रीजन भी, आई प्ले विद हिज इमोशंस। अब मुझे कोई पता नहीं था कि यार ऐसा करेंगे, लेकिन इमोशन ट्रिगर अगर आपने कर लिया ना, यू विल गेट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, राइट। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको रियल लाइफ तभी बता रहा हूँ। ओके, कैन वी यूज मैक्सिमम एडवांटेज, यस यू कैन यूज, लेकिन मैक्सिमम तो आप लोग उसको डिग्री में
आप लोग लेके चल रहे हो ना कि एडवांटेज इतना है, मैक्सिमम इतना है, आप ऐसे नहीं यूज कर सकते, राइट? कि लेवरेज का मतलब तो ये क्या होता है कि टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है? आप उसको मैक्सिमम मिनिमम के उसमें फॉर्म में नहीं यूज कर सकते। ओके, राइट। सो विल डिस्कस अबाउट द 5 पिलर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो मैंने आपको पढ़ाए थे, राइट? वर्बल, नॉन वर्बल नॉलेज, एम्पैथी और लिसनिंग, ये दोनों चीजें ही होती हैं, राइट? ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू रिमेंबर द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। वर्बल नॉन वर्बल नॉलेज में इतना रोल नहीं आता जितना रोल किसका आता है, एम्पैथी और लिसनिंग का। द फर्स्ट ऑफ यू नो द थिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, कि सबसे पहले यू हैव टू पे फोकस, आपका फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए, तभी आप किसी का नाम याद कर सकोगे। यू हैव टू रिमूव योर एजेंडा, प्री कंसीव्ड एजेंडा से पहले जो आप बातचीत शुरू कर रहे हो। यू ओनली हैव 10 to 15 पीपल, 10 से 15 लोग ही आपके उस जो पर्टिकुलर नेटवर्किंग इवेंट में है, उसके बाद भी हम लोगों का नाम याद नहीं करते। रीजन क्या होता है? वी नेवर फोकस, राइट? वी नेवर कॉन्सेंट्रेट, we already have lots of thoughts in our mind, we have to express ourselves, we never take interest in others communication, we never listen them। जब आप इतनी चीजों के साथ, और गलती आपकी बिल्कुल नहीं है, गलती आपकी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वी आर हार्ड वायर्ड, हम लोग शुरुआत से ही ऐसी चीज से आए, वी ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्रेस, वी नेवर लिसन। तो ये सब चीजें आपके नाम के साथ भी होती हैं, आप लोग नाम किसी का याद नहीं कर पाते। आई विल गिव यू द कंप्लीट स्ट्रेटेजी हाउ यू कैन रिमेंबर ऑल द नेम्स, ठीक है? चाहे 20 हो चाहे 25 हो। दूसरा मैं आपको सुपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा, तो आप लोग मान के चलिए 42% 50% लोगों के इंडिया के अंदर नाम इजीली याद कर सकते हो। वी विल डिस्कस आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन। प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियसली, ऑब्वियस बात है, जो नाम सारे के सारे याद होंगे वो आपको सबकॉन्शियसली होंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सरसाइज योर सबकॉन्शियस माइंड विद द हेल्प ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? यू हैव टू पे 100% अटेंशन। मैं बार बार आप लोगों को, जब भी वेबिनार स्टार्ट होता है, ठीक है, मैं बार बार वही सारे के सारे जो 3-4 कार्डिनल प्रिंसिपल है वो हमेशा मैं बोलता हूँ, ठीक है? अनडिवाइडेड अटेंशन, राइट? डू आस्क क्वेश्चन आफ्टर द वेबिनार, कीप योर पेन एंड पेपर हैंडी। और जो लोग इसको पूरा का पूरा ऑडियो फॉर्मेट में या रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सुन रहे हैं, प्लीज कंप्लीट दैट पर्टिकुलर वेबिनार इन वन गो। व्हाई डू आई रिपीट? क्योंकि ये सब चीजें अभी तो मैं कॉन्शियसली कर रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोगों के बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स ये सारी की सारी चीजें सबकॉन्शियसली बैठ जाएंगी, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, हाँ यार ये चीजें हैं। मुझे तो ना मजा आता है कि मैं बार बार एक चीज को रिपीट करता हूँ। सो आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स कॉन्शियसली। ये चीज आपको भी करनी है, क्योंकि जो मैं आपको आने वाले टाइम पे मेथड बताने वाला हूं, दैट इज रूमवी मेथड, ठीक है? आर स्टैंड्स फॉर रिपीट, फिर आ जाता है यूज, एम फॉर मीनिंग, वी फॉर विजुअलाइज एंड ई फॉर एंड्स। अगर आप रूमवी मेथड से फॉलो करोगे, यू वोंट बी एबल टू फॉरगेट अ सिंगल नेम, कभी भूल ही नहीं पाओगे आप लोग नाम, ठीक है? अब बात आता है रूमवी में जो आर स्टैंड्स फॉर रिपीट। रिपीट का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर यू हैंडशेक और व्हेनेवर यू एक्सचेंज योर कार्ड, ठीक है, यही होता है नेटवर्किंग में या फिर कहीं पे भी, ठीक है? अगर आप हैंडशेक करते हो या फिर इफ यू एक्सचेंज योर कार्ड्स, यू हैव टू डू द फर्स्ट थिंग, ठीक है? यू हैव टू रिपीट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। वी नेवर डू, जैसी कोई हैंडशेक होता है ना, आप लोग ट्राई करके देख लेना, मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, दे नेवर रिपीट द नेम। अगर आपने बोला कि माय नेम इज राघव, ओके हाँ होगा यार, ठीक है, यू हैव टू रिपीट हिज और हर नेम, ठीक है? फर्स्ट टाइम पे यहीं पे आप लोगों को उसका नाम रिपीट करना है, ठीक है? सपोज कि उसने बोला माय नेम इज राघव, तो आप बोल सकते हो यस राघव, हाउ आर यू, फिर करके जैसे भी आप कम्युनिकेशन आगे करोगे, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू को मैंने पूरा एक लेक्चर में भी डिस्क्राइब किया है, वो सारी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो। लेकिन पहली चीज क्या करना है, यू हैव टू स्पीक आउट हिज और हर नेम, रिपीट इट फर्स्ट टाइम, ठीक है? दैट स्टैंड्स फॉर आर वाला पार्ट आता है। उसके बाद क्या करेंगे, जब आपका कॉन्वर्सेशन शुरू होता है, यूज हिज और हर नेम एटलीस्ट फॉर 5 टाइम्स। अब उसको आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हो, कि सपोज कि इफ यू आर टॉकिंग टू यू नो मी, अब आप मुझसे बातचीत कर रहे हो इस टाइम पे, राघव एक्जेक्टली व्हाट यू डू, राघव हाउ मेनी पीपल आर इन योर फैमिली, राइट? राघव हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव। लेकिन ये सारी की सारी चीजें प्रोबिंग में नहीं होनी, कि कंटिन्यू आप यूज करके दिखा रहे हो कि आपका डिस्कशन बोरिंग है। आपका अगर सपोज कीजिए 15-20 मिनट का कॉन्वर्सेशन होता है, यूज माय नेम एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स। ज्यादा बार यूज करोगे तो चीजें होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि पूरा का पूरा चीजें इंटिमिडेटिंग लगे, ठीक है? कंटिन्यू आप राघव राघव बोल रहे हो, लेकिन ये सब चीजें आपको सटल यूज करना है। ये आपका चीजें क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स कॉन्शियसली। मैंने बोला ना कि यू हैव टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड विद द हेल्प ऑफ कॉन्शियसनेस। क्यों कॉन्शियस में बार बार बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको ये चीज अपने आप से आगे करके चलनी पड़ रही है। सबकॉन्शियसली क्या होता है, जो सिंपल बिना किसी रिएक्शन टाइम के वो चीजें निकलती हैं आपके दिमाग से। तो यहाँ पे आपने क्या बोला, 5 बार, 5 या 6 बार यू हैव टू यूज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। और ये सब चीजें क्या सर हम लोग हर किसी से करेंगे? अरे एक नेटवर्किंग इवेंट पे जाते हो, यू टॉक टू एटलीस्ट 15 to 20 पीपल। आप लोग अगर हर किसी साथ भी अगर 10-10, 15-15 मिनट आपने बातचीत करी, आपके पास इतना ज्यादा रिलेशनशिप बिल्ड होगा, क्योंकि जब मैं स्टेट एंड में आपको बताऊंगा, ठीक है, पीपल विल रिमेंबर यू।
और वो भी आपका नाम याद करे ना करे, आपको तो याद हो ही जाएगा नाम, जो हम लोगों का पर्पस है। नाउ ये चीज आप लोग कर सकते हो, इफ यू फाउंड अ पर्टिकुलर नेम, ठीक है, जो थोड़ा सा पिक्यूलर लगे, तो वहां पे आप पूछ सकते हो कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ देयर नेम। पीपल ऑलवेज गिव राइट रेस्पॉन्स। अब किसी को मीनिंग, नाम का मीनिंग नहीं पता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट, क्योंकि यहाँ पे बात क्या आ रही है, पीपल वांट टू बी लिसन्ड, people want to be listened, listen it very carefully, people don't want to listen, they want to be listened। और खास करके अगर आप पूछोगे व्हाट द नेम, यू नो, मीनिंग ऑफ योर नेम, तो वो पूरा का पूरा चीजें बताएंगे। आपके दिमाग में ये सारी की सारी चीजें जमती जा रही हैं। ध्यान रखना, नेटवर्किंग इवेंट्स हो गया या फिर कुछ भी आप लोग जाते हो, तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप जॉब के लिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, राइट। ऑलवेज मेक डिस्कशन इनटू द मीनिंगफुल डिस्कशन। जो डिस्कशन है उसको कन्वर्ट करो मीनिंगफुल डिस्कशन में, और उसकी शुरुआत क्या होती है, हमेशा नेम से होती है। सो वी डिस्कस थ्री थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज रिपीटेशन ऑफ द नेम, यूज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन एटलीस्ट फॉर 4 or 5 टाइम्स, ठीक है, 4 से 5 बार तो आप पूरा डिस्कशन में उसका नाम यूज करो, एंड यू कुड आस्क द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर नेम। फिर आता है हम लोगों का वी पार्ट, विजुअलाइज इट। अब विजुअलाइज का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए पर आपको कोई नाम दे देता है, राइट, माय नेम इज ये, तो यू हैव टू विजुअलाइज दैट पर्टिकुलर नेम। लेट मी गिव एन एग्जांपल, राइट, one of my friends, when I started working with a particular company, right, so his name was Dino Craig, right, the name was Dino Craig. Let me write here, Dino Craig, the name of that particular person. So what exactly happened when I got to know his name, right, his name was Dino Craig, right, and वो थोड़ा सा जो बंदा था, he was a bit obese, ठीक है। अब यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन करना है, ये आपको उस बंदे के साथ शेयर नहीं करना, you have to do all these things in your back in your mind, आपके दिमाग में चलना चाहिए। अब यहाँ पे the name of that particular person is Dino Craig। आज यानी कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि विजुअलाइजेशन वाली चीज आई है। मुझे नहीं पता था कि डीनो का केस आज यहाँ पे डिस्कस होगा। When I just met him for the first time, right, we simply exchanged all these words, सारी की सारी चीजें हुई, ठीक है, and he was my senior, so the name was Dino Craig। अब ऑब्वियस बात है कि जब आप इंडिया से जाते हो दूसरे कंट्री में, तो नेम भी आपको वैसे ही मिलने वाले हैं। तो हम लोग वी आर वेरी फेमिलियर विद द नेम ऑफ इंडियन नेम, ठीक है, महेश, सुरेश, रमेश, ऐसे ऐसे नामों से हम लोग फेमिलियर होते हैं। बट इफ वी यू नो गेट टू नो दीज वर्ड्स, डीनो क्रैग, तो थोड़ा सा चैलेंज आता है। अब बार बार आप लोग ये सब चीज नहीं कर सकते कि यार उसका नाम पूछोगे, फिर आपको उसका ईमेल पे चेक करोगे, यार ईमेल, कई बार तो ये होता है कि ईमेल में चेक करने पड़ते हैं, यार द नेम स्टार्ट्स विद डी, फिर डी दबा दबा के आप चेक करोगे। ऑल दीज थिंग्स आर अ बिग नो। सो आपको क्विकली नाम याद होने चाहिए। सो डीनो क्रैग, ठीक है, he was a bit overweight guy, so what exactly I did, ठीक है, डीनो को कैसे मैंने विजुअलाइज किया, डीनो स्टैंड्स फॉर डायनासोर। अब डायनासोर क्या होता है, राइट, व्हेन डायनासोर स्टैम्प्स हिज फिट। अब डायनासोर का यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं, स्टैम्प। काफी वर्ड चल रहे हैं आज डिस्कशन में। स्टैम्प का मतलब क्या होता है, राइट, व्हेन यू सिंपली, राइट, स्मैश योर फिट ऑन द फ्लोर, जोर से जो हम लोग पैर जमीन पे पटकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैम्पिंग, ठीक है। जैसे हम लोग स्टैम्पिंग होती है ना, जो लगती है स्टैम्प, तो बेसिकली हम लोग किसी के यूज भी कर सकते हैं, अगर इफ वी सिंपली पुट आवर और स्मैश आवर फिट ऑन फ्लोर, सो दैट इज स्टैम्प। तो जब डायनासोर जब स्टैम्प करता है, राइट, व्हेन इट स्टैम्प्स ऑन द फिट, तो वहां पे जो अर्थ होती है, व्हाट एग्जैक्टली इट डज, इट क्राइज, ठीक है। तो वो एक तरीके से, अब आप विजुलाइज करके देखो, डीनो क्रैग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। डीनो को मैं से लिंक किससे किया, डायनासोर से। अब डायनासोर जब जमीन पे पांव अपना पटकेगा, तो व्हाट एग्जैक्टली अर्थ डज, इट क्राइज। तो यहाँ पे वर्ड क्या गया, डीनो क्राइज। अब एग्जैक्ट मैच करता नहीं है ना, मुझे कुछ ऐसा करना था, मुझे तो वर्ड सिर्फ रियलाइज करवाना था। सो डीनो, राइट, इट वॉज अ वेरी ओवरपेड गाय, थोड़ा ओवरवेट था, सो उसको मैंने लिंक किससे किया, ठीक है, अ जाइंट एनिमल। अब ये सब चीजें आप उसके सामने अगर बोल दोगे कि मैं ऐसे नाम याद कर रहा हूं, तो आप देख लो, फिर तो कभी बात ही नहीं होगी आपसे। यू हैव टू यूज ऑल दीज थिंग्स बैक ऑफ योर माइंड। सारी की सारी चीजें आपके माइंड में बैक में चलनी चाहिए, कैसे आप लोग उस चीजों को विजुलाइज कर सकते हो। सो डीनो क्रैग, डीनो स्टैंड फॉर डायनासोर, क्रैग स्टैंड फॉर क्राइंग, ओके। एक स्टोरी क्रिएट कर ली। ऑल दीज थिंग्स आर, जो मैंने पहले भी कवर किया है आप लोगों को, कि निमोनिक्स के अंदर ये चीजें बहुत हेल्प करती है। तो क्या सर हम लोग ऐसे हर चीजों को कर लेंगे? अरे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको एंड में बताऊंगा कि हर बार आपको इतनी चीजों को रियलाइज नहीं करना। सो डीनो हो गया और क्रैग हो गया, स्टोरी कंप्लीट हो गया। तो दैट इज द पार्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। फिर आता है एंड विद द नेम। व्हेन यू कंप्लीट योर कॉन्वर्सेशन, सपोज कीजिए यू आर इनटू द नेटवर्किंग इवेंट, you had a discussion, you had a word with at least for 10 to 15 minutes, 10 से 15 मिनट आप लोगों ने सारे लोगों से, 10 से 15 लोगों से बातचीत कर ली है। when you are leaving, जब आपका इवेंट खत्म होता है, जो भी आपकी सोशल गैदरिंग है वो खत्म होती है, राइट, टॉक टू दीज पीपल, राइट, फिर वहां पे वापस आपका हैंडशेक होगा। नाउ जस्ट सिंपली से, ठीक है, गुड बाय, जो भी आप करेंगे विद द नेम। अगर आप इस प्रोसेस से चलेंगे तो आप कभी भी किसी का नाम नहीं बोलोगे। सर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, शुरू में करनी पड़ेगी,
ठीक है, क्योंकि आप बिजनेस भी चाहते हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो भी करना चाहते हो, यू डिजर्व रेस्पेक्ट, ठीक है, और आप अपने होटल के रूम्स को अपग्रेड भी करना चाहते हो, तो ये सारी की सारी चीजों में ये सब चीजें हेल्प करती है। ओके, दूसरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है तो ऑलवेज कॉल पीपल बाय द नेम, ठीक है। इन माई कॉलेज टाइम, whenever इन कॉलेज टाइम सपोज कीजिए अगर यदि हम लोग का चालान हो जाता था, इन दैट केस आई स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद ऑल द पुलिस कांस्टेबल, आई ऑलवेज कॉल्ड देम बाय देयर नेम, ठीक है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल सबके लिखे रहते हैं और काफी चांसेस में हम लोगों को छोड़ दिया इन चीजों में। फिर वही कम्युनिकेशन की जो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, यू कुड डू दिस प्रैक्टिस, ठीक है, कि क्या क्या चीजें होती है। अब ये सब चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर ट्राइड एंड टेस्टेड, मैंने अपने ऊपर वर्क करी है, तो ये चीजें ऐसा चांस ही नहीं है कि आपके ऊपर वर्क ना करे। आई गिव एग्जांपल ऑफ माय होटल एक्सपीरियंस, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। आई गिव एग्जांपल अबाउट माय कॉलेज एक्सपीरियंस, जहां पे चालान भी माफ कर देते थे, वो लोग छोड़ देते थे। रीजन बीइंग आई वाज वेरी सबमिसिव, ठीक है, सबमिशन तो बहुत जरूरी है, आप अकड़ के बात करोगे तो वैसे ही कुछ नहीं होने वाला। एंड ऑलवेज यूज देयर नेम, पुलिस कांस्टेबल होते हैं उनके भी बैच लगा रहता है, यू कुड कॉल बाय देयर नेम, दे ऑलवेज, दे क्या, एवरीवन फील्स स्पेशल इफ यू कॉल बाय देयर नेम। और फिर जब आप अपना इवेंट खत्म होता है उसके बाद भी व्हेन यू डू हैंडशेक और जब आप लीव करते हो, ठीक है, हमेशा उनसे वापस हाथ मिलाओ एंड रिकॉल देयर नेम। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि 10 से 15 लोग अगर हैं वहां पे, ठीक है, कोई भी ये सब स्टेप फॉलो नहीं करता, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बिजनेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब, राइट, दैट वुड बी प्रीटी हायर एज कंपेयर टू अदर 13 और 14 पीपल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर आपने जैसे अभी मैंने डीनो क्रैक का एग्जांपल लिया था, डीनो का, सर ऐसे हम लोग कितने नाम याद करेंगे? मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, राइट, आफ्टर दिस वेबिनार गो टू गूगल, आप गूगल पे जाइएगा, ठीक है, और देखना कि हमारे कंट्री के अंदर, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अब डीनो क्रैक इंडिया में देखोगे तो बहुत कम लोगों का नाम होगा, हम लोग के नाम जो पॉपुलर चलते हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा कि टॉप 50 और 60 नेम्स कौन से हैं, ठीक है, जो हमारे कंट्री में पॉपुलर है। गूगल गिव्स यू ऑल दी आइडिया, ठीक है। अब उसमें महेश, सुरेश, रमेश, सारी की सारी चीजें निकल जाएंगी, राइट। 30 और 40 के ऊपर अगर सपोज कीजिए 30 नेम्स निकल के आते हैं जो हमारे कंट्री में 40% लोग यूज करते हैं नेम्स के अंदर, गूगल सब बता देता है सारे का सारे डेटा कि विच नेम इज वेरी पॉपुलर। उसके ऊपर आपने अगर कोई स्टोरी बना ली सब, अब जब आप किसी इवेंट पे कम्युनिकेट करते हो किसी को, आपके पास स्टोरी तैयार है। अच्छा, जैसे डीनो की स्टोरी मैंने क्या आप लोगों को सुनाया था, वैसे ही आप लोग पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड हो और आपको उसकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार स्टोरी सोचने की। तो आप ऐसा ही लोगोगे कि आप बात तो उससे कर रहे हो और आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन चल रहा है। ओके, सो दिस इज द प्रैक्टिस व्हाट यू कैन डू। और जब आप इस तरीके से कर लोगे, सेम थिंग हैपन इन फ्लाइट ट्रैवल, इफ यू टेक नेम ऑफ क्रू मेंबर, यस इट हैपेंस, ठीक है, यस। अब यहाँ पे 1% रोड की सर साउथ इंडियन नेम में, साउथ इंडियन नेम, हाँ देखो अब ये वाली बात आती है ना, साउथ इंडियन नेम जो होते हैं वो नेम थोड़े से बड़े होते हैं, राइट, दे ऑलवेज हैव सम एसेंस ऑफ संस्कृत, ठीक है। अब उनके नाम भी ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत संस्कृत का आता है, तो आप उसके लिए तो आपको आपकी क्रिएटिविटी लगेगी, ठीक है। आई नेवर एनकाउंटर्ड विद दीज नेम कि मेरे को कोई साउथ का कोई वर्ड में कभी करना पड़ा, लेकिन वहां पे आपकी क्रिएटिविटी हेल्प करेगी, कैसे क्रिएटिव हो, बट नेवर मिस प्रोनाउंस देयर नेम। ओके, सेम थिंग, सेम थिंग इफ यू टेक द नेम ऑफ, हाँ ये वाला क्रू मेंबर वाला ले लिया, ठीक है। विवेक, इवन चाइनीज नेम इज वेरी डिफिकल्ट, यस, राइट। आपने जैसे पूछा कि चाइनीज नेम बहुत डिफिकल्ट है, सर चाइनीज नेम हमारे लिए या फिर दूसरे कंट्री के लिए उनके खुद के लिए भी बड़े डिफिकल्ट होते हैं। रीजन होती है जो लैंग्वेज है मैंडेरियन है, इट इज बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज है, बहुत इजीली समझ में नहीं आती। और when they migrate to the different country, suppose Chinese if they go to the US, right, they change their name, वो अपना नाम ही चेंज कर लेते हैं। तो वो लोग नाम कौन सा रखते हैं जो यूएस से रिलेटेड होता है। हम इंडियंस रहते हैं, वी डोंट डू दिस थिंग, हम लोग जो नाम है, राइट, तो मैं अपना नाम चेंज नहीं करूंगा। बट इफ चाइनीज माइग्रेट टू द यूएस, राइट, ही और शी ऑलवेज चेंजेस देयर नेम, वो अपना नाम ही चेंज कर लेते हैं, राइट। मिस प्रोनाउंस करवाने से अच्छा, इससे अच्छा तो यही है कि कंट्री का नाम ही अपना पूरा कर लो। ओके, फेयर इनफ। So we discussed this thing about end with the name, the practices, Rumbi method बहुत अच्छा है, आप इस चीज को फॉलो करोगे तो it will always give you results. Okay. Sir, my question please discuss. Do ask your question. आपके क्वेश्चन हो सकता है वो छूट गया, आप पूछो ना वापस। How it is possible? Which part? You are asking about this sentence only? नेम के लिए मैंने आपको यही वाला तो जो स्ट्रेटजी बताई है ना, ठीक है, कि आप लोगों को रुम्बी मेथड फॉलो करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिपीट द नेम,
ठीक है, जब आप किसी से मिलते हो उसके नाम को रिपीट करो, जब आप अपना कार्ड्स एक्सचेंज करते हो, ठीक है, जब आप उनसे बातचीत कर रहे हो, एटलीस्ट यूज हिज नेम फॉर 4 to 5 टाइम्स इन द कॉन्वर्सेशन. अब डजंट मैटर वेदर यू स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश और वट एवर लैंग्वेज यू स्पीक, नाम तो चेंज नहीं होता ना, नाम तो वही रहेगा, तो वो आपको यूज करना है. ठीक है, इफ यू कैन आस्क, ठीक है, इफ यू फाइंड अ पर्टिकुलर नेम वेरी पिक्यूलियर, ठीक है, वेरी डिस्टिंग्विश नेम आपको लगता है, इन दैट केस यू कुड आस्क द मीनिंग ऑफ दैट नेम एंड पीपल वुड लव टू आंसर. ठीक है, सबको अच्छा लगता है अपने बारे में, नाम के बारे में बताना. ठीक है, यू कुड विजुअलाइज दैट पर्टिकुलर नेम, आपके दिमाग में ब्रेन मैपिंग कर रहे हो. एंड फाइनली व्हेन द मीटिंग एंड्स, जब आप पूरा का पूरा इवेंट पे आप जा रहे हो, इसमें नेटवर्किंग इवेंट में आप एक आदमी से मिलकर सीधा तो ना हैंडशेक करके बाहर चले जाओगे, देन यू अप्रोच टू द सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन. व्हेन द मीटिंग एंड्स, जब सारी चीजें खत्म हो जाती है, ठीक है, अगेन यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स. तो वहां पे आप एंड करते हो तो भी आप उसके जाके नाम पूछ सकते हो. ओके, पूछना नहीं, सॉरी, उसको बोलना है, नाम तो याद हो ही जाएगा. सर वी कैन यूज सरनेम, नो नो नो, राइट, डोंट यूज सरनेम. ठीक है, कभी भी मैं नहीं बोलता राइट व्हाट्स माय सरनेम, राइट, मैं कभी नहीं बोलता व्हाट्स माय लास्ट नेम. आई ऑलवेज रिप्रेजेंट माई सेल्फ एज अ राघव ओनली. रीजन क्या होता है, हम इंडियंस है ना, हम लोग बहुत ज्यादा इन चीजों पे बिलीव करते हैं. ठीक है, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, हमेशा सेकंड पर्सन पूछता है कि आगे क्या लगाते हो. यू मस्ट हैव नोटिस दिस थिंग एंड आई हेट दिस थिंग. अगर आप चाहते हो एक तरीके से तो आप दूसरे कंट्रीज को बोलते हो कि वहां पे रेसिज्म है, सबसे ज्यादा रेसिस्ट तो हम ही है. हम लोग दूसरी चीजों को बोलते हो कि भैया क्या है, तू हिंदू है, फिर हिंदू में भी ब्राह्मण है, फिर इन सब चीजों पे डिस्कशन होता है, विच इज बैड थिंग. तो कभी भी जब हम लोग, आपको मैं आप ईमेल राइटिंग में बताऊंगा, ठीक है, ऑफिस एटिकेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट, डोंट आस्क द सरनेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. ठीक, कभी भी सरनेम नहीं पूछना, और कभी भी कम्युनिकेशन में भी आपको यूज नहीं करना. ओके, यस, ठीक है, ये हम लोगों का मेंटेलिटी होती है ना. ठीक है, वो सारी चीजें पूछेंगे, रिलीजन, फिर कास्ट के बाद पूछेंगे कहाँ से बिलोंग करते हो. ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, राजस्थान से हो, ओके, फिर और चीजों पे जाएंगे. ये सब चीजें फालतू होती हैं, और खास करके सरनेम तो कभी भी नहीं पूछना. ओके सर, व्हाट पिच मींस इन ईमेल. देखिए, यू यूज्ड इट. पिच का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए, मुझे आप पिच के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप ईमेल लिख रहे हैं, सपोज कीजिए यू आर प्रोस्पेक्टिंग, आपने कोई बिजनेस आपको लेना है, तो वहां पे क्या करेगा, यू हैव टू सेट अप योर पिच. क्योंकि आप लोग, पिच हमेशा ईमेल पे भी नहीं होती, पिच बातचीत में भी होती है. सपोज कीजिए आई एम ऑफरिंग यू समथिंग, इन दैट केस आई हैव अ सेट ऑफ पिच. ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली आपसे बातचीत करूंगा. आई हैव ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन व्हाट यू विल बी आस्किंग. ठीक है, प्रोडक्ट महंगा है, आई हैव द आंसर. ठीक है, अभी परचेज नहीं करना, आई हैव द आंसर. मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव द आंसर. जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे पहले से ही तैयार होते हैं. ये तो हो गए रेबिटल्स. ठीक है, जो आप लोग क्वेश्चंस पूछोगे उसके आंसर. लेकिन पिच ऐसी होती है, ठीक है, कि विद इन अ सेट ऑफ फ्रेम, जो उसका स्टैंडर्ड है वो आपको कंटिन्यू याद रखना ही है. राइट, दिस इज कॉल्ड पिच. और खास करके सेल्स पीपल डू दिस थिंग. When I forgot the name, then how to know the second time opposite name. When I forgot the name, then how not to know second time opposite name. आप एक बार के लिए क्वेश्चन को रिफ्रेश करोगे, राइट? I didn't get your question. ठीक है. In any senior in the meeting, we can with the name. सर, अब ये जो डाउट आपने पूछा ना कि सीनियर के साथ नाम बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ये भी मैं आपको ईमेल में कवर करूंगा. क्या खास करके ये सब चीजें मुझे, अगर सपोज कीजिए हम लोग का जो ट्रेनिंग सेशन चलता है, तो यूएस बेस्ड क्लाइंट्स के लिए जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ उसके अंदर ये चीज मैं कभी ऐड नहीं करता. ठीक है, लेकिन हाँ, हम इंडियंस होते हैं ना, हम लोगों की आदत होती है, बिकॉज वी ऑलवेज कैरी आर बिग ईगोज. हम लोग बहुत सारे अपने ईगो लेके चलते हैं. तो वहां पे भी इंडियन कंपनीज हैं. आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस. राइट, इन्फोसिस मल्टीनेशनल कंपनी, बट उनका जो कल्चर है वो पूरा का पूरा इंडिया से रिलेटेड है. ठीक है, वहां पे रूट से इंडिया से हैं. दो कंपनीज मल्टीनेशनल, दे हैव ऑफिसेज इन डिफरेंट लोकेशन. लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये कैसी कंपनीज है, इनका कल्चर डिफरेंट है. सारी की सारी कंपनी मल्टीनेशनल है. तो वहां पे भी जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन बहुत बेटर करता है, डिपेंड टू कल्चर. तो वहां पे अगर आपका सीनियर आ गया इंडियन कंपनीज में, राइट, यू हैव टू कॉल देम बाय सर. फिर वहां पे सर ऐसी चीजें चलती हैं. लेकिन अगर आप बात कर रहे हो यूएस बेस्ड कंपनीज के लिए, तो वहां पे सर और मैम ऐसी चीजें कुछ भी नहीं चलती. डजंट मैटर वेदर पर्सन इज ऑफ एज ऑफ 30, 40, 50, 60 और 70. ठीक, कितनी भी एज का है, एंड इफ यू आर 15 और 20 years old, डजंट मीन, राइट, यू कैन कॉल दैट पर्टिकुलर पर्सन बाय द नेम ओनली. ओके, हाउ टू सेकंड टाइम आस्क इज आवर नेम व्हेन आई फॉरगेट. यू कैन सिंपली आस्क, कोई बुरी बात नहीं है. ठीक है, कोई बुरी बात नहीं अगर आप वापस सेकंड टाइम पूछ रहे हो तो. होता है ना कई बातों में, लेकिन इसकी जगह गलत नाम बोलना, ठीक है, वो फिर चीजें गलत है. ओके, ग्रेट. सो दिस थिंग वी कवर्ड अबाउट द नेमिंग. हम लोगों ने पिच का थोड़ा देख लिया. जब मैं आपको ईमेल राइटिंग बताऊंगा उसमें मैं चीजें वापस कवर करूंगा, और उसमें भी मैं वापस बताऊंगा कि सीनियर को कैसे एड्रेस करना है. ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें यूज करनी है. अभी के लिए आप मान के चलो कि यस,
कि अगर इंडियन बेस्ड कंपनीज होती हैं तो उसमें जो ईमेल राइटिंग होगी दैट वुड बी अ बिट डिफरेंट एज कंपेयर टू द यूएस या फिर यूरोपियन बेस्ड. ठीक है, गुड. नाउ वी कवर्ड दिस थिंग. अब हम लोग बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट द डेली लाइफ एंड रेगुलर पैटर्न. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन शुरू होने वाला है जिसके अंदर हम लोग ये सारी की सारी चीजें कवर करेंगे. इन द प्रीवियस सेशन द पीपल हु आर ज्वाइनिंग टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, आप लोगों के लिए भी ये चीज अच्छी है क्योंकि पुरानी चीज को रिवाइज करने के बाद ही हम लोग नई चीज शुरू करेंगे, क्योंकि आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द पीपल राइट माइट हैव फॉरगॉटन. लिसन इट वेरी केयरफुली. लॉट्स ऑफ पीपल माइट हैव फॉरगॉटन. अगेन आई प्लेड विद द वर्ड्स सबकॉन्शियसली. क्यों यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया? माइट हैव. क्यों? अगर मैं बोलता हूं कि सारे के सारे लोग, ज्यादातर लोग भूल ही गए होंगे, इन दैट केस अगेन आई एम ब्लेमिंग. लेकिन मैंने क्या किया? आई प्लेड सेव. मैंने क्या बोला? लॉट्स ऑफ पीपल माइट हैव फॉरगॉटन. तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको भी यूज करनी है. द पीपल हु डोंट हैव एनी आइडिया मे हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, माइट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म. यू मस्ट हैव गॉट द रिकॉर्डिंग. क्या बोला मैंने? यू मस्ट हैव गॉट द रिकॉर्डिंग. आपको रिकॉर्डिंग मिल गया होगा. ठीक है, आप लोग एक बार सेशन को देखना. If you have any question, you could ask me after the webinar. Okay, I will repeat it completely. Doesn't matter कि उसके लिए 1 घंटा लगे, कैसा भी लगे, you could ask any question. ठीक है, अभी का मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि आज के जो सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, we will cover the previous session as well, क्योंकि उसके बिना चीजें रिदम पे नहीं आएंगी. So we discussed in the previous classes whenever we talk about the daily life and regular patterns. आप लोगों को पता ही है, ठीक है, जब भी आप डेली लाइफ के बारे में बात करते हो कि जो भी आपकी एक्टिविटीज है, तो what exactly the sentences you make, I, you, we, इसके साथ क्या आता है? Only action, first form or remaining part of the sentence, whatever it is. जैसे we take session, I take session, you attend classes. In that case, we are talking about myself, I am talking about yourself. So you take session. You took session day before yesterday, you take session today, and you will be taking session day after tomorrow as well. तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये आपका डेली पैटर्न है. डेली पैटर्न में हम लोग क्या बात करते हैं? We always go with the action. There is no s or es if we are using that particular sentence with the I, we, you or they. If we talk about some other person, he or she, we always use action s or es plus remaining part of the sentence. We must have used these things. आप लोगों ने पास में भी देखा होगा. You must have made lots of sentences as well. इस पे sentences बनाए भी होंगे. जैसे हम लोग अगर बात कर लेते हैं एक बार के लिए, he or she teaches new students. दोनों जेंडर को लेके देख लो. ठीक है, आप चाहो he ले लो चाहे she ले लो. She teaches new students. क्यों? उनका डेली पैटर्न है ना कि वो कल भी पढ़ा रही है, आज भी पढ़ाएंगी. So this is the all thing what we use. I ask you to make videos daily. मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, राइट, यू हैव टू मेक वीडियोस डेली. आई आस्क यू टू मेक वीडियोस डेली. दिस इज माय डेली हैबिट. ये मेरा एक हैबिट ही है कि जैसे वेबिनार शुरू होता है, वेबिनार में एटलीस्ट फॉर 3 to 4 टाइम्स आई ऑलवेज आस्क यू टू मेक वीडियोस डेली. शी अचीव्स क्वार्टरली टारगेट्स इजीली. सपोज कीजिए आपकी कंपनी के अंदर कोई पर्सन है, राइट, शी वर्क्स वेरी वेल, सो उसकी गारंटी पक्का है कि शी ऑलवेज अचीव्स राइट क्वार्टरली टारगेट्स इजीली. इफ यू नोटिस यहाँ पे क्या लग रहा है? सारी की सारी चीजें एस आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे कोई एस और ईएस नहीं आ रहा. यहाँ पे क्या ईएस आ रहा है. ये सारी की सारी चीजें बेसिक होती हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डेली पैटर्न और डेली एक्टिविटीज व्हाट यू परफॉर्म. ही अलाउज मी टू मेक एज मेनी मिस्टेक्स एज आई कैन. सपोज कीजिए आप अपने घर पे, राइट, यू आर शूटिंग अ पर्टिकुलर वीडियो एंड यू आर कमिटिंग सम मिस्टेक्स, की गलती हो रही है, ठीक है, कोई सेंटेंस गलत जा रहा है. आप क्या बोलोगे अपने घर वालों को या अपने फ्रेंड को? डजंट मैटर, मुझे मतलब नहीं है. क्यों? सर अलाउज मी. यहाँ पे ही कौन है? ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर अलाउज मी टू मेक एज मेनी मिस्टेक्स एज आई कैन. कुछ भी बोलूं, उन्होंने मुझे अलाउ कर देते हैं. चाहे मैं आज वीडियो बनाऊं, कल वीडियो बनाऊं, मैं तो वीडियो बनाऊंगी चाहे मैं गलती करूं या ना करूं. बिकॉज सर अलाउज मी. सर अलाउज मी बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट मी एंड आई एम नॉट प्रेजेंट देयर. ठीक है, आप अपने फैमिली या फिर अपने फ्रेंड से किसके बारे में बात कर रहे हो? मेरे बारे में बात कर रहे हो. आई एम नॉट प्रेजेंट. सो यहाँ पे क्या आ रहा है? सर अलाउज मी टू मेक एज मेनी मिस्टेक्स एज आई कैन. ठीक है, पीपल मेक वीडियोस डेली इन आवर ग्रुप. अब यहाँ पे सपोज कीजिए यू आर ब्राउजिंग आवर फेसबुक ग्रुप. ठीक है, और इफ यू आर नॉट मेकिंग वीडियोस, क्या लगेगा यार लोग तो वीडियो रोज बनाते हैं. पीपल मेक वीडियोस इन आवर ग्रुप. कहीं ना कहीं आपके सेंस आएगा. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, द पीपल हु हैवंट स्टार्टेड टेक एक्शंस. आप लोग बनाना शुरू करो, ये चीजें बहुत रिजल्ट देंगी आप लोगों को. द पीपल हु ऑलरेडी स्टार्टेड, राइट, दे मस्ट हैव फाउंड लॉट्स ऑफ चेंजेस. दे मस्ट हैव फाउंड, गारंटी पक्का है चेंजेस आए ही होंगे. 95 to 100% की पॉसिबिलिटी है. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव फाउंड लॉट्स ऑफ चेंजेस इन योरसेल्फ. ओके, सो पीपल मेक वीडियोस डेली इन आवर ग्रुप. आपने जैसे पूरा फेसबुक को ब्राउज कर रहे हो, सडनली यू गॉट स्टक, यार पीपल मेक वीडियोस इन आवर ग्रुप, लेट्स शूट इट. तो आपके दिमाग में वेव आएगा. वो डिफरेंट स्टोरी है. मुझे तो सेंटेंस ये बोलना है, पीपल मेक वीडियोस डेली इन आवर ग्रुप. क्यों?
कल भी बनाया, आज भी बनाया, अरे हो सकता है अभी कोई बना रहा हो वीडियो. सो दिस इज द डेली पैटर्न, डेली प्रैक्टिस, डेली हैबिट, व्हाट पीपल जनरली फॉलो. पीपल मेक वीडियोस डेली इन आवर ग्रुप, राइट. यू गिव मी एक्सेसिव वर्क. सपोज कीजिए, अगेन समवन आस्क, सर वीडियो में क्या होना चाहिए? सर वीडियो में मैम वीडियो में कंटेंट होना चाहिए. वॉट एवर यू वांट टू स्पीक, जस्ट डिस्क्राइब योर सर्विस और बिजनेस, व्हाट यू डू. जो भी आप बनाना चाहो उस पर बना सकते हो. आई डोंट नो विच सिटी यू बिलोंग टू, जिस भी सिटी से हो आप उस सिटी के बारे में बोल सकते हो. इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन, राइट. माय नेम इज ये मैं ये सब करती हूँ, दिस इज माय क्वालिफिकेशन. जो भी आप बोलना चाहते हो, यू कैन मेक अ इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर 1 or 2 minutes. उसके बाद आप जो टॉपिक लेना चाहो, यू आर मोस्ट वेलकम. ओके, देयर इज नो बाउंडेशन, बट प्लीज अवॉइड रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इन सब चीजों के लेकर ऊपर कोई भी टॉपिक ना बनाओ, ठीक है. वीडियोस नहीं बनाने आपको. यू गिव मी एक्सेसिव वर्क. ओके, गुड. यू गिव मी एक्सेसिव वर्क. ये सिचुएशन कब आती है? सपोज कीजिए योर मैनेजर, राइट, ही गिव्स यू लॉट्स ऑफ वर्क. परेशान हो गए आप फाइनली जाके. सो वहां पे आप बात क्या कर रहे हो कि यार जब भी वर्क दो, कल आओ तो भी वर्क मिलता है, ठीक है, आ जाओ वर्क मिले, वीकेंड से मंडे को लेने बैठो तो वर्क मिल जाता है, फ्राइडे को वर्क मिल जाता है, इतना साजा. सो ऑल दीज थिंग्स आर द डेली हैबिट ऑफ योर मैनेजर. What actually he does, he or she always gives you excessive work. Right now you are complaining to him, you give me excessive work. So ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्या बताई हैं यहाँ पे, right. That particular doer is कौन होता है? The person who does that particular action. Doer कौन है यहाँ पे? He or she, right. What exactly he or she does? She teaches. तो यहाँ पे एक्शन वो कौन कर रहा है? यहाँ पे he or she. इस सेकंड केस में एक्शन कौन कर रहा है? I. थर्ड में she, sir, people and you. Because who is giving you excessive work? You. अब you is the person जो भी एक्शन कर रहा है, चाहे वो आपका मैनेजर हो या फिर जो भी हो, आप उसके बेसिस पे देख सकते हो. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? In these type of sentences we are giving importance to the person, right, who does that particular work. क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से करी है? He or she teaches new students. तो यहाँ पे we are giving importance to he or she. तो यहाँ पे कौन टीच करता है? He or she. ध्यान रखना ये चीजें, sentences you must have studied, rules and all these things you must have studied in your school days. लेकिन ये सब चीजें प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आने वाली है. हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. ये इतने 6 सेंटेंसेस, आई टुक ओनली द बेसिक एग्जांपल्स. इन बेसिक एग्जांपल्स को हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को आप अपनी बेटर कर सकते हो, हाउ यू कैन प्ले विद द वर्ड्स, और कितना डिफरेंस क्रिएट करते हैं एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करने के अंदर. अब आपको मैंने चीजें बताई हैं क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? आई आस्क यू टू मेक वीडियोस डेली. आई, राइट. सर अलाउज मी टू मेक मिस्टेक एज मेनी एज आई कैन. यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सर की, आपके घर में, राइट. मैं वहां पे प्रेजेंट हूं नहीं, बट आप बात किसके बारे में कर रहे हो? सर के बारे में. पीपल मेक वीडियोस डेली इन आवर ग्रुप. आप फेसबुक पे ब्राउज कर रहे हो पूरे के पूरे वीडियोस. यू आर टॉकिंग अबाउट द पीपल, यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द पीपल, ठीक है. यू गिव मी एक्सेसिव वर्क, वी ऑलरेडी डिस्कस. यहाँ पे आप इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हो? यू को. Now the situation changes. When we don't give importance to the doer, then scenario never changes. ध्यान रखना. अब हम लोग क्या करेंगे? इन sentences को we will do rephrase. Again someone asked, I always make video. Good. Good. अब जब आप लोग क्या कर रहे होगे, जब हम लोग इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, राइट, वी नेवर गिव इंपॉर्टेंस टू द डूअर. इन दैट केस सिनेरियो चेंज नहीं होता. मतलब क्या है? जो स्टोरी है, कहानी है, वो चेंज नहीं होती, लेकिन सेंटेंस चेंज हो जाता है. हाउ? इन दैट केस, ठीक है, ऑब्जेक्ट. अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ये सारी की सारी चीजें जो मैंने लिखी है, ठीक है, इसको एक बार सुनना है, उसके बाद कान से निकाल देना है. ये जितनी चीजें लिखी हैं, ये सब चीजें आपको एक बार आएंगी. उसके बाद जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है. सेंटेंसेस के साथ साथ ये चीजें अपने आप डेवलप हो जाएंगी. सपोज कीजिए, इफ यू आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू द पर्सन हु डज दैट थिंग, इन दैट केस वी गिव इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है. प्लस इज आर एम प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म और फिर प्लस बाय डूअर लग जाता है. दिस इज द बेसिक फॉर्मेट. यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर स्कूल डेज, ठीक है, वो सब चीजें पढ़ी है. ये चीज मैंने क्यों लिखा है? चाहता तो आई कुड हैव स्किप्ड इट, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद भी आपके दिमाग में एक सेंटेंस फॉर्मेशन रहना चाहिए नोट्स के फॉर्म में कि हाँ यार ये सब चीजें हैं. यू कुड रिकॉल इट टाइम एंड अगेन जितनी बार आप उसको रिपीट करना चाहते हो. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ही, शी और इट, इन दैट केस प्लस इज प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म प्लस बाय और डूअर जो भी लग जाता है. इफ यू टॉक अबाउट द आई, वी, यू, दे प्लस आर प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म प्लस बाय डूअर, इसका मतलब क्या होता है? सर लिख तो दिया आपने. बेसिक मतलब क्या होता है? इन दीज सेंटेंसेस we are giving importance, right, to the person who does these things. यहाँ पे he और she के बारे में बात आ रही है.
जब इन सब की इंपॉर्टेंस नहीं देनी होती, इन दैट केस राइट सिचुएशन वुड बी ऑल टुगेदर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस मेकिंग। लेकिन कहानी वो की वही रहती है, कॉन्टेक्स्ट वो का वही रहता है, सिनेरियो भी चेंज नहीं होता, ओनली सेंटेंस चेंजेस। ओके, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस लिखा है, राइट, सिनेरियो नेवर चेंजेस, राइट, बट सेंटेंस डज। लेट मी मेक इट अ बिट अपवर्ड ताकि आपको दिख जाए। गुड, ओके। अब इस पे सेंटेंसेस कैसे होते हैं, चलिए पहले हम लोग एक एक सेंटेंस को रिफ्रेश करेंगे। ही शी टीचेस न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप लोग एक इमेजिन करो, राइट, देयर इज वन टीचर, राइट, और वो क्या करती है क्लास में, शी टीचेस और ही टीचेस अकॉर्डिंग टू द जेंडर। आप लोग बना लो, यू कुड विजुअलाइज दैट पर्टिकुलर पिक्चर। नाउ द सिचुएशन चेंजेस, ठीक है। ये आप लोगों के सामने एक पिक्चर है, ठीक है। द पर्सन इज टेकिंग क्लास, ठीक है, जो भी टीचर है, राइट, शी इज टेकिंग क्लास, क्लास चल रही है, क्लास इन्होंने रेगुलर लेनी है, कल भी ली थी, आज भी लेंगी, कंटिन्यू लेती है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन वुड बी ही शी टीचेस न्यू स्टूडेंट्स। नाउ द गेम चेंजेस। सपोज कीजिए इंस्पेक्शन के लिए स्कूल में प्रिंसिपल, डायरेक्टर, कोई भी, राइट, दे कम इनटू द क्लास। ध्यान से सुनना, ध्यान रखना सेंटेंस कैसे चेंज होता है। अब जो डायरेक्टर है, ठीक है, उनका, ठीक है, जो टीचर है उनसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, वॉट एवर द इशू हैव, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वहां पे क्या करेंगे, जो डायरेक्टर है, जो फिर सपोज कीजिए कि डायरेक्टर है, मैं आई एम गिविंग यू द कंप्लीट एग्जाम, एक सिनेरियो, आपके डायरेक्ट कोई स्कूल के अंदर कोई चीफ गेस्ट आते हैं, राइट, और व्हाट एग्जैक्टली चीफ डायरेक्टर इज डूइंग, ठीक है, वो पूरे के पूरे जो स्कूल के अंदर है ना, ही सिंपली वॉकिंग हिम थ्रू, पूरा का पूरा एक बार वॉक थ्रू करवा रहे हैं जो भी उनके चीफ गेस्ट आते हैं। जैसे चीफ गेस्ट क्लास में आते हैं मैम के, इन दैट केस, ठीक है, डायरेक्टर की वैसे ही नहीं बनती, ठीक है, टीचर से, तब डायरेक्टर वहां पे क्या करेगा, ही और शी चेंजेस द सेंटेंस इन अ डिफरेंट वे। वो चीफ गेस्ट को क्या बोलेंगे, अब सपोज कीजिए एक नई क्लास है, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, न्यू स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग यहाँ पे मिलती है, और हु ट्रेन्स, ऑब्वियस बात है, जहाँ पे जो टीचर है जो अभी खड़ी हुई है वही ट्रेनिंग देती है। व्हाट ही कुड हैव स्पोकन, ही शी टीचेस न्यू स्टूडेंट्स देयर, ठीक है, हियर, या फिर जहाँ की भी बात आएगी वो तो रूम पे ही खड़े हुए हैं ना, इन दैट केस ही शी टीचेस न्यू स्टूडेंट्स, बट ही प्लेड विद द पॉलिटिक्स। वो गेम खेलेंगे, वो इस सेंटेंस को रिफ्रेश करेंगे, क्या बोलेंगे, न्यू स्टूडेंट्स आर टॉट हियर, न्यू स्टूडेंट्स आर टॉट हियर। यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दे दी, स्टूडेंट्स को दे दी, टीचर पूरी की पूरी मूवी से ही बाहर हो गई। रीजन क्या है, जितनी बार भी, ठीक है, चीफ गेस्ट के नाम पे, अब यहाँ पे होता क्या, सपोज कीजिए मैं कोई टीचर का नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पे कोई नाम लिख लिया, सपोज कीजिए मनीषा, राइट, मनीषा टीचर्स न्यू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब जब सेंटेंस अगर यदि चीफ गेस्ट को मनीषा बोलते हैं, तो चीफ गेस्ट के दिमाग में नाम किसका जाता है, मनीषा का। और ये सब चीजें ऑफिस पॉलिटिक्स में बहुत होती है, पीपल नेवर गिव क्रेडिट टू अदर्स, इसी चीजों में सेंटेंसेस हमेशा रिफ्रेज होने शुरू होते हैं। सो सपोज कीजिए नाउ इफ ही इज हैविंग अ डिस्कशन विद द चीफ गेस्ट, राइट, ही रिफ्रेज द कंप्लीट सेंटेंस, क्या बोला, न्यू स्टूडेंट्स आर टॉट हियर। अब चाहे तो ट्रेन को तो हटा दो, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग की तो बात ही नहीं हो रही, बिल्कुल सेम टू सेम है, ऊपर वाला सेंटेंस को रिफ्रेश कर दिया, मनीषा कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर। ये सब चीजें यूज करते हैं। इफ यू आर इनटू द गुड कम्युनिकेशन, यू विल गेट टू नो हाउ पीपल प्ले विद वर्ड्स। यही गेम है, यही एसेंस है। यू मस्ट हैव स्टडीड दीस थिंग इन स्कूल डेज, राइट, कि कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। इफ वी गिव इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, इज आर एम प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म लग जाता है, बट ये सब चीजें आपको डेली लाइफ में यूज करनी है, राइट, हमेशा। तो इसका मतलब सर हमेशा यही होता है कि इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स, नो, इसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि पॉलिटिक्स की बात करोगे। जब भी, राइट, इफ यू डोंट वांट टू गिव इंपॉर्टेंस टू द पर्सन हु डज दिस थिंग, in that case you give importance to the object. The object here is new students are taught here. Okay, good. Yes, you could use one person wrote here ki sir new students are taught here by Manisha. वो नहीं बोलेगा ना, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि ऐसा बोलना होता तो वो पहले सेंटेंस ही बोल देता, राइट। पर्सन ही सिंपली वुड हैव सेड मनीषा टीचर्स न्यू स्टूडेंट। व्हाई डिड ही यूज दिस थिंग, क्योंकि उनको तो मनीषा को पिक्चर से आउट ऑफ द फ्रेम करना ही है। बट यस, सेंटेंस पूरा बोलोगे तो आप बाय मनीषा लगा सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें ऑफिस में आप लोग, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिकॉज राइट नाउ वी आर इनटू द डिस्कशन विद द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ये सब चीजें बाय वहां पे यूज नहीं होता। यू मस्ट हैव स्टडीड दीस थिंग्स इन स्कूल डेज, कि वहां पे बाय लग जाता है, ये सारी की सारी चीजें। आपको रियल लाइफ कम्युनिकेशन सीखना है, ठीक है। और ये सब चीजें ध्यान रखना। आप लोग जितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, प्लीज टाइप यस। कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यस, गुड। आप लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, अब ध्यान रखना, आप लोग जब हेडलाइंस पढ़ते हो, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हेडलाइंस का एसेंस क्या होता है।
मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि न्यूज़पेपर हो गए और बुक्स नॉवेल्स हो गए, ठीक है, इन सब चीजों को लिबर्टी होती है, दे कैन प्ले विद द ग्रामर। कोई ग्रामर के रूल फॉलो नहीं करते वो लोग। अंदर न्यूज की बात नहीं कर रहा, जो हेडलाइन होती है उसके अंदर वो लोग ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनका मेन इंटेंशन क्या होता है, दे सिंपली वांट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ रीडर। इसीलिए जो हेडलाइंस लिखी जाती है वो इसी फॉर्मेट में लिखी जाती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो तो ये भी स्किप कर जाते हैं, ये सब चीजें भी न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा, ठीक है, सेंटेंस मिलता है, ठीक है। थ्री पीपल किल्ड, ठीक है, आई हेट नेगेटिव वर्ड्स, चलो हम लोग यूज कर लेते हैं फिर भी। थ्री पीपल किल्ड, ठीक है, अब ये लिख गया। अब इफ यू फॉलो द पर्टिकुलर ग्रामर, इसका मतलब क्या होगा, अच्छा अच्छा, तीन लोगों ने मारा। किल का मतलब तो यही होता है ना, अगर आप इफ यू गो विद द पर्टिकुलर ग्रामर, जबकि इसका मतलब क्या है कि तीन लोग मारे गए हैं यहाँ पे, राइट, थ्री पीपल किल्ड। सो दे ऑलवेज गो विद दिस टाइप ऑफ थिंग, ग्रामेटिकली इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है, लेकिन उनको हेडलाइन जो बनाई जाती है, मैंने आपको बोला दे ऑलवेज गेट द लिबर्टी, तो उनको लिबर्टी होती है, दे कैन गो विद द डिफरेंट लेवल। फिर आप अंदर पढ़ना शुरू करोगे तो फिर आपको सिचुएशन पूरा समझ में आएगा। ओके, लेट मी डिलीट इट। आई सी मोस्ट ऑफ द टाइम मैनेजमेंट डज नॉट गिव वेटेज। यस यस, नहीं देते, नहीं देते, ठीक है। नो 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 नो, अभी नहीं आएगा, ठीक है। मोस्ट न्यू स्टूडेंट्स हैज टॉट, नो नो नो, हैज का यूज नहीं होगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे बात क्या हो रही है, रोज भी, यानी पैटर्न है ना, नए स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, उनको यहीं पे पढ़ाया जाता है, राइट। तो न्यू स्टूडेंट्स आर टॉट हियर, न्यू स्टूडेंट्स आर टॉट हियर, आर टॉट हियर, ठीक है, हैज वाला चीज यूज नहीं होगा, ओके। जो हम लोग इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, हम लोग इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंपॉर्टेंस मिल रही है। और डेली चीज होती है, जब भी नए स्टूडेंट्स आते हैं, राइट, शी टीचेस, लेकिन शी को तो इंपॉर्टेंस देना नहीं है, यहाँ पे किसको इंपॉर्टेंस देनी है, नए स्टूडेंट्स को। न्यू स्टूडेंट्स आर टॉट हियर, ओके। यस, दिस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स हैपेंस, गुड गुड, फेयर इनफ, ओके। लेट्स टेक अ डिफरेंट एग्जांपल। जैसे हम लोगों ने सेंटेंस किया था, सर आस्क मी टू मेक वीडियोस डेली, ये मैंने आप लोगों को बोला है, ठीक है। सपोज कीजिए, अब आप पूरा का पूरा एक विजुलाइज कीजिए, यू आर सिंपली वेल प्रिपेयर्ड कि मुझे अपना वीडियो बनाना है, समवन नॉक्स द डोर, ठीक है, ही और शी एंटर्स, आप क्या बोलोगे, डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब। रीजन क्या है, आई एम आस्क्ड टू मेक वीडियोस डेली, आई एम आस्क्ड टू मेक वीडियोस डेली। अब यहाँ पे, अब जरूरी है क्या आप बार बार ये बोलोगे कि सर ने बोला है, सर ने बोला है, क्यों, नोबडी नोज, आपके अलावा मुझे कोई नहीं जानता, ठीक है, ना आपकी फैमिली ना आपके फ्रेंड्स को किसी को पता है कि आप क्या कोचिंग ले रहे हो एंड हु इज टीचिंग यू। तो बार बार आप चाहो तो सर को स्किप कर सकते हो, इन दैट केस आई एम आस्क्ड टू मेक वीडियोस डेली, डोंट डिस्टर्ब मी। आप चाहते तो यहां पे भी लगा सकते थे क्या, डोंट डिस्टर्ब मी। इस सेंटेंस को हम लोग यहाँ पे भी लिख लेते हैं ताकि चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट लगे। Why I am using these things to make the scenario more realistic, कि ऐसा होता ही है, राइट। Someone disturbs you, अरे यार क्या वीडियो बना रहे हो, बाद में कर लेना काम, ठीक है, चलो गेम खेल लेते हैं, फिर कुछ भी कर लेते हैं। इन दैट केस पीपल डिस्टर्ब यू, बट यू हैव टू ऑप्शन, सिंपली से सर आस्क मी टू मेक वीडियोस, क्यों, मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में बोलूंगा, दिस इज माई डेली पैटर्न। और आप लोगों का डेली पैटर्न क्या है, सुनना मुझसे, क्या, आई एम आस्क्ड टू मेक वीडियोस डेली। अब यहाँ पे बात आती है, यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर सेल्फ। जितनी बार आप अपने आप को इंपॉर्टेंस दोगे तो वहां पे क्या आ जाता है, अब आपने थोड़ी ना मुझे बोला है, राइट, यू आर आस्क्ड टू मेक वीडियोस डेली, तो यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद योर फैमिली मेंबर्स, आपने क्या बोला, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम आस्क्ड टू मेक वीडियोस डेली, राइट। मैंने आपको जो रूल भी बताया है, ठीक है, क्या रूल आता है, आई के साथ, ओके, आई जस्ट मेड वन मिस्टेक, आई के लिए सेपरेट लिखना चाहिए था मुझे। गुड, डन,
So we just covered this wala part. I am asked to make videos daily. Okay, next examples. अब हम लोगों ने जो आपको पहले बताया था, जो हम लोग सारे एग्जांपल दे रहे थे, she achieves quarterly targets easily. Reason being, she is hard working. बहुत जबरदस्त एफर्ट्स मेहनत करती हैं. So achieving target is just like a cake walk. उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है. Reason, she knows all the process. She works very well. She knows about the product. Right? She pitches very well. She knows her client, right? She always remembers, client's name. सारी की चीजों की बात है. तो achieving targets just like a cakewalk for her. तो यहाँ पे जब डिस्कशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या बात आती है? शी अचीव्स क्वार्टरली टारगेट्स इजीली. ध्यान रखना यहीं पे शुरुआत होती है पॉलिटिक्स की जब आप लोग किसी को क्रेडिट नहीं देते. अब सपोज कीजिए मैनेजमेंट की इन सब चीजों से लेके जो एम्प्लॉय है उनसे बनती नहीं है. इन दैट केस द पीपल, राइट, दे स्टार्ट प्लेइंग पॉलिटिक्स. क्या बोलेंगे? या टारगेट्स इजीली अचीव हो जाते हैं. क्वार्टरली टारगेट्स आर इजीली अचीव्ड. अब बोलेंगे अरे सर लगाने में यहाँ पे बाय हर लगा सकते हैं. अरे लगा लो, आप, कौन कहता है, ठीक है. लेकिन अगर आपने बाय हर लगा लिया तो फिर तो पहला वाला सेंटेंस ही बोल दोगे ना आप लोग. तो बेटर क्या है, यहाँ पे जो लोग गेम खेलते हैं या फिर जो सेंटेंस को, अब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में नथिंग चेंजेस, स्टोरी वही रही है लेकिन सेंटेंस का फॉर्मेशन पूरा का पूरा चेंज हो गया. टारगेट तो अचीव हो ही जाते हैं ना. हु केयर्स कि कौन करता है. सो शी अचीव्स क्वार्टरली टारगेट्स इजीली. लेकिन अगर आपको इसको रिफ्रेश करके बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? क्वार्टरली टारगेट्स आर इजीली अचीव्ड. इट ऑलवेज हैपेंस. ठीक है. खास करके जो विमेन वर्कफोर्स है, दे ऑलवेज फेस चैलेंजेस. ठीक है. बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, पॉलिटिक्स होती है उनके साथ, चाहे वो सैलरी को डिस्पैरिटी हो. द वर्ड अगेन आई यूज हियर. ठीक है, गुड वर्ड, लेट मी शेयर विद यू. The word here is disparity. Disparity का मतलब क्या होता है? Huge difference. There is a huge difference. ठीक है, between anything, जो भी हो. तब यहाँ पे मैंने वर्ड क्या यूज किया? डिस्पैरिटी. डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? मैंने बोला कि जो विमेन वर्कफोर्स होती है, राइट, दे ऑलवेज फेस डिस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ सैलरी. अब ये चीजें कंपनी का कल्चर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड होता है. दूसरा, प्रमोशन को लेके प्रॉब्लम आती है, इसीलिए बिकॉज विमेन आर ऑलवेज सॉफ्ट टारगेट. ठीक है, प्रमोशन में दिक्कत होती है. दूसरा, आप लोगों को एक वर्ड और बताता हूं. द वर्ड हियर इज ग्लास सीलिंग. ठीक है, यू कुड गूगल इट आफ्टर दिस वेबिनार. आप लोग इस वर्ड को करना. एक ग्लास सीलिंग इफेक्ट होता है. ठीक है, ग्लास सीलिंग इफेक्ट कॉर्पोरेट्स के अंदर, कंपनीज में बहुत चलता है. इसका मतलब क्या होता है कि विमेन, राइट, दे आर ऑलवेज गिवन लेस चांसेस इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन. अब कंपनीज का कल्चर चेंज हो रहा है. जब विमेन लीडर्स स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव, कंपनीज ने लीडर, अब विमेन लीडरशिप अगर आ जाएगी तो चीजें इंप्रूव होंगी. लेकिन ग्लास सीलिंग इफेक्ट क्या होता है? इसका सेम मतलब यही होता है, जहां पे विमेन आर गिवन लेस चांसेस इन ऑर्डर टू गेट प्रमोशन. ठीक है, चाहे वो सैलरी हाइक हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज हो. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें नेगेटिव है. एंड लेट मी शेयर यू वन एग्जांपल व्हाट हैपेंड विद Amazon. पीपल जनरली लव दैट कंपनी कि इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें होती हैं. इक्वल एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर है, सारी की सारी चीजें. बट कंपनी में अगर यदि हम लोग बात करें तो दे वर वेरी रिलक्टेंट इन टर्म्स ऑफ हायरिंग विमेन कोडर. बकायदा इसके ऊपर रिसर्च हुआ था, क्योंकि आई एम इनटू द HR, आई नो ऑल दीज थिंग्स, हाउ दीज कंपनी वर्क. जब कंपनी के अंदर जब हम लोग पूरा डेटा फिल करते हैं, सो दे आस्क अबाउट द जेंडर. ठीक है, कि मैन विमेन में पूछते हैं. तो जब पर्टिकुलर पर्सन पुट्स इन जेंडर, जहाँ पे फीमेल लिखा जाता है, तो जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टिंग ऑफ रेज्यूमे, ठीक है, वो बहुत कम कर देता है. वो डिपेंड करता है जॉब कैसा है. कोडिंग के अंदर उन लोगों ने पूरा क्राइटेरिया बना रखा है. सो 2 or 3 years बैक, राइट, आई केम टू नो अबाउट दिस फैक्ट अबाउट Amazon, राइट. और काफी लोगों ने फिर मुद्दे भी उठे थे. अब जाके इन चीजों को ठीक किया है, नहीं किया. तो यहाँ पे क्या आता है? विमेन ऑलवेज फेस डिस्पैरिटी, ग्लास सीलिंग इफेक्ट. ठीक है, एक वर्ड और आता है, द वर्ड हियर इज ब्रो कल्चर. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा जो कल्चर है, ठीक है, वो पूरा का पूरा मेल डोमिनेंट है वहां पे. ठीक है, फीमेल के लिए कोई भी यहाँ पे सपोर्टिव नहीं है. तो वर्ड यहाँ पे क्या आता है? ब्रो कल्चर. ऑल दीज थिंग्स, ग्लास सीलिंग, ब्रो कल्चर, ये सारे के सारे क्या है? नेगेटिव वर्ड है. ठीक है, और डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? अ डिफरेंस. अब बात कर सकते हैं फाइनेंशियल डिस्पैरिटी इन इंडिया. व्हाट डज इट मीन? अमीर तो अमीर है और गरीब गरीब है. सो देयर इज अ गैप. ये जो गैप है ये बहुत क्या है? ह्यूज है. तो ये जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड डिस्पैरिटी. सो वी डिस्कस दीज वर्ड्स हियर. 1% टाइम. When women is about that senior staff are not accepting the, yes it happens, right, लेकिन टाइम अब चेंज हो रहा है. ठीक है, बट यू हैव टू टेक इनिशिएटिव. अब आप लोगों को खुद को इनिशिएटिव लेना है. ऑल द विमेन, राइट. सर दिस सेंटेंस लुक्स लाइक टोंटिंग. यस, हो गई पूरा का पूरा.
आई हैव बीन टोल्ड टू प्रिपेयर रिपोर्ट, नो नो आई डिडंट टीच यू, अभी वाला चीज नहीं पढ़ाया है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स हैपेंस, यस वी कवर, ठीक है। सो ये वाली चीज जो मैंने आपको बताया, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी तो ये वाले हैं कि कंपनी के टारगेट, राइट, इजीली अचीव, ये जो कंपनी के टारगेट्स होते हैं अचीव कर लेते हैं, हु अचीव्स डजंट मैटर, राइट। इसके ऊपर हम लोग दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं पार्ले जी बिस्किट का, ठीक है। पार्ले जी बिस्किट्स का सबसे ज्यादा जो पार्ले जी बिस्किट है वो सेल होते हैं, और अभी कोरोना के टाइम पे तो सबसे ज्यादा सेल हुए थे। नाउ हाउ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए अब पार्ले जी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इट्स अ बिस्किट कंपनी और पार्ले जी, ठीक है। लेट मी टेक द नेम ऑफ पार्ले जी। अब पार्ले जी का जो सेल है, ठीक है, सबसे ज्यादा हुआ। अब पार्ले जी का जो सेल है सबसे ज्यादा कौन करता है, ऑब्वियसली एम्प्लॉय करेंगे। लेट मी टेक द नेम, कितने एम्प्लॉयज हैं पार्ले जी के, आई डोंट नो द फिगर, हम लोग लेके चलते हैं 30,000। आई रोट दिस सेंटेंस, राइट। 30,000 तो कम है, पता नहीं लैक्स में होंगे। 30,000 एम्प्लॉयज सेल पार्ले जी इजीली। अब मुझे बताओ ये सेंटेंस कितना ज्यादा एब्सर्ड लग रहा है, ठीक है। बिल्कुल ये इस सेंटेंस का सेंस ही नहीं है। अब ऑब्वियस बात है पार्ले जी की कंपनी में, ठीक है, एफर्ट्स तो सभी ने डाला ना इन ऑर्डर टू सेल द पार्ले जी, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये 30,000 एम्प्लॉयज नहीं रखते, ठीक है। ये एम्प्लॉयज की यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है। हम लोग क्या बोल लेते हैं, पार्ले जी इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, वी आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू दीज 30,000 एम्प्लॉइज। तो हमेशा आप लोग इससे लिंक मत करना कि पॉलिटिक्स की बात करोगे कि पॉलिटिक्स में ही हमेशा इन सब चीजों को यूज होता है, इज आर एम प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म, नो। यहाँ पे कोई नहीं बोलता, हम लोग ये बोलते हैं कि पार्ले जी सबसे ज्यादा बिकता है, पार्ले जी सबसे ज्यादा बिकता है, ठीक है। हु सेल्स, एम्प्लॉइज ऑब्वियसली, सेल्स पीपल। तो यहाँ पे आप सेल्स का नाम का बंदे का नाम थोड़ी ना लोगे, बिकॉज वी आर फोकसिंग अबाउट द पार्ले जी। सो पार्ले जी इज सोल्ड इन इंडिया इजीली। ये तो मैंने ऐसे लगा लिया, आप लोग लगा लेना इंडिया को, ये चीज इंपॉर्टेंस नहीं रखती। I just wanted to give you an idea about that particular thing. It's an object here, right? So we are giving importance to the object, and the sentence is Parle G is easily sold. Employees sell Parle G easily. Yes, but we don't give importance to employees, right? So in that case, Parle G is easily sold. अगर आप बोलोगे ना employees sell Parle G easily, तो ये sentence थोड़ा सा अजीब लगता है. Okay? Can use knowledge disparity? Yes, you could use it. Okay? Great. लेट अस डिस्कस द अदर एग्जांपल। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, कोई आपसे गलती कर रहे हैं, आपका ग्रामर हिल रही है, आपका प्रोनाउंसिएशन गलती आ रहा है, एंड पीपल स्टार्टेड सिंपली आस्किंग यू कि देखो ये गलती मत करो, ठीक है, ये गलती नहीं करो। आप क्या बोलोगे, ठीक है, डजंट मैटर, ठीक है, बिकॉज ही अलाउज मी। अब ही अलाउज का मतलब क्या हो गया, यू आर टॉकिंग अबाउट मी, ठीक है। सर अलाउज मी टू मेक एज मेनी मिस्टेक्स एज आई कैन। सर ने मुझे अलाउ कर दिया है, चाहे मैं गलती कितनी भी करूं, ही ऑलवेज अलाउज मी टू मेक एज मेनी मिस्टेक्स एज आई कैन। अब यहाँ पे बार बार आप सर को बोल रहे हो क्योंकि मेरा इंपॉर्टेंस वहां पे इतना ज्यादा नहीं है, नोबडी नोज मी, वहां पे किसी को नहीं पता। इन दैट केस यू मेक द सेंटेंस अबाउट योरसेल्फ ओनली। आई एम अलाउड टू मेक एज मेनी मिस्टेक्स एज आई कैन। आई एम अलाउड टू, किसने अलाउ किया, ऑब्वियसली मैंने, ठीक है। मैं हमेशा आप लोगों को अलाउ करता हूं कि स्टार्ट मेकिंग वीडियो, डजंट मैटर वेदर यू कमिट 1 मिस्टेक, 2 मिस्टेक, 3 मिस्टेक, पिक्चर क्वालिटी कैसी है, ऑडियो क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, डजंट मैटर। सो ओवरऑल थिंग यहाँ पे क्या आता है, सर अलाउज मी, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंस आप अपने आप को दे सकते हो। व्हाट यू कैन से, आई एम अलाउड टू मेक एज मेनी मिस्टेक्स एज आई कैन। ओके, यू कैन टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स। इन सारे के सारे सेंटेंसेस को आफ्टर दिस वेबिनार, ठीक है, यू मस्ट हैव टेकन स्क्रीनशॉट, नहीं लिया, नोट्स आप लोगों ने बनाए होंगे, ठीक है। इन सब सेंटेंसेस के साथ साथ आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। हमेशा ऐसे नहीं कि ये सेंटेंसेस इसी के ऊपर, ट्राई टू गेट इनटू द डिफरेंट स्टोरी, इस पे सेंटेंसेस बनाओ, घर का या फिर ऑफिस का एनवायरनमेंट लो, व्हाट एवर सेंटेंसेस यू कैन मेक, स्टार्ट मेकिंग। दूसरा, इनको वीडियो फॉर्मेट में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इन द 2 or 3 days back, right, when we were having a discussion about the video making, I already said that some people made some mistakes in the previous videos. Reason क्या है, you didn't have any idea about these things, ठीक है, ये आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ी थी, इसीलिए, राइट, वी नेवर पॉइंट आउट द मिस्टेक व्हाट यू कमिट। हम लोगों को पता है ना कि आप लोग जैसे जैसे कंटेंट आता जाएगा, आप लोगों के जो नंबर ऑफ एरर्स है वो अपने आप कम होंगे। वी कुड हैव स्टॉप यू देयर, अरे गलती मत करो, गलती मत करो, तो आप लोग आज दिन तक
ठीक है, फिर तो आप कभी शुरू नहीं कर पाओगे। इसीलिए वट एवर मिस्टेक यू आर कमिटिंग, डू इट, राइट, बिकॉज यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स एज यू कैन। यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं यू आर अलाउड। You are allowed to make as many mistakes as you can. I की जगह क्या हो जाएगा, you हो जाएगा। So these type of sentences you could easily make. जितने आप sentences बना सकते हो बनाना शुरू करो। एग्जाम्पल मैंने कौन से लिए, वही जो आप लोगों की लाइफ से रिलेटेड है। Okay, now it is more visible. Good. Just take example. People make videos daily in our group. You are browsing the Facebook group and then you got to know, यार देखो कितने वीडियोस बन रहे हैं, people make videos daily in our group. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब सपोज कीजिए if you don't want to give importance to the people, in that case यार वीडियो काफी बनते हैं ग्रुप में, यार वीडियो काफी बनते हैं ग्रुप में, लिसन वेरी केयरफुली, यार वीडियो काफी बनते हैं ग्रुप में। तो यहाँ पे पीपल, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल। आपने कभी नहीं बोला कि लोग वीडियोस बना रहे हैं अपने ग्रुप में डेली, आपने क्या बोला, ग्रुप में वीडियोस डेली बनते हैं, ग्रुप में वीडियोस डेली बनते हैं। इन दैट केस यू आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू द पीपल, वीडियोस आर मेड डेली इन आवर ग्रुप, राइट। अब यहाँ पे क्या किया आपने, पीपल के जितने भी एफर्ट्स थे उनको खत्म कर दिया। द सेंटेंसेस वीडियोस आर मेड डेली इन आवर ग्रुप, दिस इज द वे यू कैन कम्युनिकेट। ये सारी की सारी चीजें, जैसे पार्ले जी का एग्जांपल लिया था वैसे एग्जांपल लोगे। अब यार एक मुझे बताओ कितने लोग हैं इनमें से, ठीक है, डू यू नो देम पर्सनली, कोई किसी को जानता भी नहीं है। इन दैट केस यहाँ पे आप क्या बात करोगे, वीडियोस काफी बनते हैं, वीडियोस काफी बनते हैं ग्रुप के अंदर, सो यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू वीडियोस। जब आप वीडियोस को इंपॉर्टेंस देते हो तो यहाँ पे वीडियोस आर मेड डेली इन आवर ग्रुप, दिस इज द वे वी मेक सेंटेंसेस। ओके, you give me excessive work, this is the last example what we discussed कि जब हम लोग इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, the person who does that particular action। अब यहाँ पे पर्सन कौन सा है, you है, राइट। सपोज कीजिए you are overwhelmed, बहुत सारा काम आ गया, you get frustrated, you simply go to the your boss cabin, वहां पे गए और वहां पे आपने सीधा जाके फोड़ दिया अपना पूरा का पूरा जितना गुस्सा था। you gave me excessive work, you give me excessive work। in that case क्यों, काम कल भी ज्यादा मिला था, आज भी ज्यादा मिला है, कंटिन्यू, इट इज हिज नेचर। किसकी नेचर है, आपके बॉस की। नाउ यू हैव ऑप्शंस, यू गिव मी एक्सेसिव वर्क। अब अगर आप ये बोल दोगे तो यू ऑलरेडी स्पॉइल्ड द रिलेशनशिप विद योर बॉस। यू हैव टू प्ले टेक्टफुली, यहाँ पे आपको दिमाग से खेलना है। अगर आप यहाँ पे सेंटेंस को सिंपल ये भी तो बोल सकते हो, हु गिव्स यू वर्क, राइट, ऑब्वियसली द पर्सन। तो उसको आप कभी भी यूज मत करो, आई एम गिवन एक्सेसिव वर्क। अब यहाँ पे आप इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हो, यू की। यू की जगह किसको दिया, यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू आई, ठीक है, आई एम गिवन एक्सेसिव वर्क। ध्यान रखना ये सेंटेंसेस आपको ईमेल के अंदर, ठीक है, बोर्ड मीटिंग के अंदर, चाहे आप स्कूल के अंदर हो, कॉलेज के अंदर हो, यूनिवर्सिटी के अंदर हो, ये सारे के सारे सेंटेंसेस को रिफ्रेश करना है। ध्यान रखना दोनों की सिचुएशन में सिचुएशन चेंज नहीं हुई है, द थिंग विच चेंज दैट इज सेंटेंस ओनली। सिर्फ सेंटेंस चेंज होता है इसके अंदर, और कुछ चेंज नहीं हो रहा, बोलने की टोन बिल्कुल चेंज हो जाती है, राइट। सपोज कीजिए यू गिव मी एक्सेसिव वर्क और मैं बोलूं आई एम गिवन एक्सेसिव वर्क, इन दैट केस जो आपका बॉस है प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो आपकी बात सुन लेगा, लेकिन पहले चांस में तो कोई सीन ही नहीं है। ओके, और दूसरा आपने ब्लेम खत्म कर दिया ना, ब्लेम गेम। ऊपर वाले में तो साफ आप ब्लेम किसको कर रहे हो, यू को, बट इन दिस सेंटेंस यू सिंपली स्किप्ड इट। अब आप कोई ऐसा तो बोलोगे नहीं आई एम गिवन एक्सेसिव वर्क बाय यू, ये बोलोगे नहीं, ठीक है, तो ये तो स्किप हो जाएगा, ठीक है। नहीं दिखा कईयों को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय यू, ठीक है, ये तो फिर वही मतलब निकल गया ना ऊपर वाले का। इन दैट केस वी हैव टू स्किप इट, आई एम गिवन एक्सेसिव वर्क, ठीक है, could you please help me, or could we have a discussion, could we have a couple of minutes to have discussion because I am given lots of excessive work, your job is done, people would love to listen you। लेकिन आप अगर इस तरीके से बोलोगे you give me excessive work, no, फिर तो कोई चांस ही नहीं है। ओके, यू आर गिवन, नो 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 नो, यू आर गिवन मी, ये तो आएगा ही नहीं ना, ये तो आपने वही गलती कर दी जो उस वाले सेंटेंस में। इसका सेंस क्या निकलेगा, आप खुद सोचो एक बार के लिए। लेट मी राइट, यू आर गिविंग मी, इसको थोड़ा सा मैं एक बार के लिए छोटा कर देता हूँ। गुड, यू आर गिविंग मी एक्सेसिव वर्क, तो ये तो मतलब यही है ना कि आप मुझे हमेशा वर्क देते हो, तो इन दैट केस यू आर गिवन तो आएगा ही नहीं, फिर तो वो सेम वाला ही आ जाएगा, यू गिव मी एक्सेसिव वर्क, सेम टू सेम ऊपर वाला आएगा, बट आई एम गिवन, ठीक है। सपोज कीजिए आप अप्रोच करते हो, सिंस यू आस्क दिस क्वेश्चन कि यू आर गिवन कैसे आएगा, चलो हम लोग इसको लिख लेते हैं,
अब हम लोग इस सेंटेंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मी तो वैसे ही नहीं आएगा, यू आर गिवन एक्सेसिव वर्क। सपोज किया जाता है यू आर हैविंग डिस्कशन विद योर कलीग, आपका एक फ्रेंड है, आप हो, आपका फ्रेंड है और आपका मैनेजर आपके पड़ोस में बैठा हुआ है। लिसन इट वेरी केयरफुली। आप हो, आपका नहीं, आपका कोलीग है और आपका मैनेजर पड़ोस में बैठा हुआ है। आप लोग डिस्कस कर रहे हो और आप जानते हो कि आपके कलीग को, राइट, योर मैनेजर गिव्स लॉट्स ऑफ वर्क, बहुत ज्यादा वर्क देता है। अब ऑब्वियस बात है, ना तो आप अपने मैनेजर से तोड़ सकते हो, ठीक है, और यू हैव अ कंपैशन राइट टुवर्ड्स योर कलीग एज वेल, आपकी एम्पैथी भी है। तो वहां पे आप क्या बोल सकते हो, यू आर गिवन एक्सेसिव वर्क, यू आर गिवन एक्सेसिव वर्क। हु गिव्स? ऑब्वियसली मैनेजर, बट यू डिडंट टेक हिज नेम, आपने उसका नाम नहीं लिया। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी तो बोल सकते थे, जो मैनेजर बैठा था, ठीक है, ही गिव्स यू एक्सेसिव वर्क, ये बोलते ही, ठीक है, आपकी रिलेशनशिप आपके मैनेजर से खराब हो जाएगी। लेकिन आप पहला वाला बोलोगे, ठीक है, यू आर गिवन एक्सेसिव वर्क, तो आपने क्या हुआ, अपनी बात भी बोल दी, ठीक है, मैनेजर ने सुन भी लिया, ठीक है, लेकिन आपने उसको सीधा पॉइंट आउट डायरेक्टली किया भी नहीं, ठीक है। ये सब चीजें बहुत हेल्प करेंगी एट द टाइम ऑफ योर कम्युनिकेशन, और ये चीजें आपको भी नोटिस करनी है, ठीक है। देन हाउ द पर्सन इज प्लेइंग विद यू, किस किस तरीके से सेंटेंसेस बोल रहा है, किस तरीके से आपकी ईमेल आ रही है, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल अटेंशन देना है एक एक सेंटेंस के ऊपर। वॉट एवर यू आर रीडिंग, वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, वॉट एवर यू आर लिसनिंग, ऑलवेज गेट इन टू दैट पर्टिकुलर टोन। इस टोन में वो बातचीत हो रही है, ये टोन डिसाइड करता है, ध्यान रखना, सेंटेंस फ्रेमिंग में यही टोन है। एक टोन तो वोकैबुलरी आती है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हाईली पॉजिटिव है, और दूसरी होती है ये सब चीजें जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंस को चेंज कर देते हैं। ओके, हु हैज गिवन, who has given me आएगा ना excessive work। yes you could use excessive work given to me, you could use, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस नहीं बनता ही है, ठीक है। वन पर्सन आस्क, excessive work given to me, देखो ये जो आपने सेंटेंस बोला ना, excessive work given to me, तो यहाँ पे क्या आएगा, excessive work is given to me, excessive work is given to me। अब आपने क्या क्यों बताया, क्यों बोला excessive work given to me? हम लोग की हैबिट हो गई है कि हम लोग is rm जैसी चीजों को we generally skip it, but grammatically excessive work given to me it is wrong। क्यों? उसके अंदर बेसिकली इज आर एम मिस था, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे इज आर एम आएगा, लेकिन बोलचाल के अंदर कोलोकियल इंग्लिश में वी जनरली स्किप दिस थिंग इज आर एम, विच इज रॉन्ग, ठीक है। आपको यूज करना ही है, मेल में करोगे नहीं होगा ये सारी की सारी चीजें, इट्स अ बैड प्रैक्टिस। ओके, एक्सेसिव वर्क इज गिवन टू मी, तो ये सेंटेंस कभी भी आपको यूज नहीं करना है। ओके, जो आपने अभी लिखा, बेटर इज आएगा और वर्क्स प्लूरल हो जाएगा तो आर आ जाएगा। Okay, good, fair enough. So what you could do, all these things we made couple of sentences, ठीक है। You could practice all these sentences, आप लोग प्रैक्टिस करो इसका, create lots of stories, as many stories as you can, जितना आप लोग स्टोरीज बना सकते हो उसके ऊपर बनाना शुरू करो, क्योंकि जब मैं ईमेल की आपको सैम्पलिंग दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे ईमेल्स लिखे जाते हैं, ठीक है, कैसे कैसे आज हम लोगों ने देखा कि इवन नॉर्मल कम्युनिकेशन में वी कैन स्किप ऑल दीज थिंग्स, कि कैसी कैसी चीजों की वैल्यू होती है, ईमेल में और चीजें हम लोग पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें आप लोगों को कंटिन्यू हेल्प करेंगी। I am again repeating, all of you, the people who have not made their LinkedIn account, please create your LinkedIn account ASAP। मैं ये नहीं चाहता कि जब मैं LinkedIn का प्रोफाइल बिल्डिंग की क्लास लूँ, आप उस दिन अपना अपना साइन अप कर रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि सर फोटो लगानी है, क्या हम लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना है। एटलीस्ट आप लोग पूरा वाला एक अकाउंट क्रिएट करो, इट इज जस्ट लाइक अ फेसबुक जैसा अकाउंट होता है वैसे लिंक्डइन का अकाउंट होता है, उसको क्रिएट करना शुरू करो। नहीं तो क्या होगा, मैं पूरी स्लाइड भी बता दूंगा, आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन यू वोंट बी एबल टू इम्प्लीमेंट। तो वो जो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सारी की सारी चीजें आप लोग इंप्लीमेंट करो, ताकि यू विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लाइक लिंक्डइन इज अ मनी स्पिनर, बहुत आपको पैसा दे सकता है इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो भी चीजें आप लोग प्लान कर रहे हो, और इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस एज वेल। तो लिंक्डइन के ऊपर वो तभी क्लास सेशन होगा, मैं नहीं चाहता कि उस दिन, ठीक है, आप लोग पूछो सर व्हाट इज लिंक्डइन, क्या होता है, ठीक है, कैसे अकाउंट क्रिएट होगा, बताऊंगा मैं सब कुछ ही, लेकिन क्यों हम लोग वेट करें, उससे पहले आप लोग बना के रखो ना। इट इज जस्ट लाइक अ फेसबुक इंस्टाग्राम पे जैसे आप लोगों ने अपने अकाउंट्स बनाए। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन यूजिंग लिंक्डइन, प्लीज टाइप यस। कितने लोग हैं जो यूज कर रहे हैं लिंक्डइन अभी? सर डीबी यस्टरडे आई हैड डिस्कस्ड विद यू दैट नाइट अगर मी गुड 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 गुड, यस यस, एक्सीलेंट।
सर could we use LinkedIn profile in the name of my business? No यार, आप मत करो। ऐसे जो प्रोफाइल होते हैं ना जिसमें आप अपना खुद के कंपनी के नाम से अकाउंट बनाते हो, उसके लिए पेज क्रिएट करो ना, क्रिएट योर पेज। अकाउंट तो आपका खुद के नाम से होना चाहिए। ओके, someone is asking the spelling. Okay, आप पेज अपना क्रिएट करो, लेकिन अपना ये पेज कंपनी का क्रिएट करो, लेकिन जो आप अपना अकाउंट बनाओ, दिस इज अ नेम, ठीक है, लिंक्डइन। इन द प्रीवियस क्लास, ओके, पेज, हाँ, जैसे एफबी का पेज होता है वैसे लिंक्डइन पे भी पेज होते हैं, ठीक है, यू कुड क्रिएट, लेकिन पहले आप अपना अकाउंट बनाओ, ठीक है। yesterday only, ठीक है, we discussed, one person asked this thing, ठीक है, I just wanted to share this thing, ठीक है, कि अब यहाँ पे बात आती है कि सर आई डिस्कस्ड यू दैट व्हेन आई टॉक विद अदर पर्सन समटाइम आई एम ब्लैंक, you gave me wonderful suggestion about AQL, ask question and listen works today. I'm very happy that you are my mentor. Thank you sir. This is excellent thing that आपने AQAL को day before yesterday we discussed the technique AQAL, ask question and listen. If you get stuck, ठीक है, अगर आप बिल्कुल कहीं पे अटक जाते हो तो भी, ठीक है, अगर आप किसी से क्वेश्चंस पूछना शुरू करोगे, आज मैंने आपको यही बताया, लिसनिंग, लिसनिंग के साथ क्या नेचर आ जाती है, इट ऑलवेज एसोसिएट्स विद एम्पैथी। आप अगर यदि कनेक्ट करोगे ना, पीपल ऑलवेज वांट टू बी लिसन, किसी को भी सुनना पसंद नहीं है, हर किसी को सुनाना पसंद है, और उसके लिए बेस्ट टेक्निक क्या होती है, AQAL। मैं पूरा का पूरा AQAL के ऊपर जो सेशन लूंगा सेल्स के अंदर, मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन बिल्ड अप द रेपो, उसके अंदर AQAL के ऊपर टेक्निक बताऊंगा, बट सम पर्सन आस्क्ड डे बिफोर यस्टरडे एंड ऑल दीस थिंग्स वर्क। ओके, एक्सीलेंट, ग्रेट। सो यू कुड क्रिएट द अकाउंट, डजंट मैटर कि आप टीचिंग प्रोफेशन में हो, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप कुछ भी हो, यू हैव टू क्रिएट योर लिंक्डइन अकाउंट, आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना ही है। ओके, so this is the quote of the day. Names are the sweetest and most important sound in any language. We discussed lots of things about the name, how you can remember, and who said? Dale Carnegie. Names are the sweetest and most important sound in any language. Whenever I use your name, or whenever you listen your own name, it always gives you a soothing experience. ठीक है, अब वो नहीं कि कोई चिल्ला के बोल रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जब भी आपका कभी नाम बोला जाता है, यू मस्ट हैव नोटिस दिस थिंग, ठीक है। कितने लोग होते हैं जो रेडियोज के अंदर, टीवी के अंदर शो में बोलते हैं कि सर एक बार मेरा नाम ले लो, क्यों? सबको अच्छा लगता है नाम। तो वही चीज, हु सेड? डेल कार्नेगी, राइट, ही वाज अ ग्रेट लीडर, उन्होंने बोला था नेम्स आर द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। एंड वी कवर टुडे सेशन हाउ यू कैन रिमेंबर द नेम, रूबी मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया, सारी की सारी चीजें। यू हैव टू पे फोकस, देन आर स्टैंड्स फॉर रिपीट, यू स्टैंड्स फॉर, सारी की सारी रिपीट करते जाओ। जो मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया, प्लीज टाइप डाउन। Five times, good. Meaning, visual and ends, good, good. तो ये जो तरीका है वो सारा का सारा नेमिंग के अंदर आपको हेल्प करेगा। ओके, ग्रेट। सो इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट, और ओके, वोकैबुलरी इज स्टिल पेंडिंग। वोकैबुलरी ऑफ द डे, द वर्ड हियर इज स्वैम्प। ओके, द पीपल हु आर ज्वाइनिंग टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज द वर्ड स्वैम्प। इसके ऊपर डिस्कशन होगा, और आपको क्या करना है इन द नेक्स्ट क्लास, आई थिंक टुडे इज फ्राइडे, सो नेक्स्ट क्लास वुड बी ऑन मंडे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, no, today is Wednesday only, right? We have a Friday. So in the next class, that is day after tomorrow, हम लोग स्वयं के ऊपर डिस्कशन करेंगे, मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, सिनोनिम्स और यूसेज। जैसे आज हम लोगों ने वर्ड देखा था, एवरी डे वी डिस्कस अ न्यू वर्ड। ओके, एवरी डे वी डिस्कस अ न्यू वर्ड, ठीक है। लिसन वेरी केयरफुली, एवरी डे वी डिस्कस अ न्यू वर्ड। मैं हमको क्यों इंपॉर्टेंस दूं? मैं तो वर्ड को इंपॉर्टेंस किसको दूंगा? न्यू वर्ड को। A new word is discussed every day, ये भी तो बोल सकता हूँ अगर यदि हम लोग इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। यूज हो गया ना ये वाली सारी चीजें, क्यों? पिछली क्लास में हुआ था, यस। आज हुआ, हाँ। आगे भी होगा, यस। इट इज आर डेली पैटर्न। डेली पैटर्न क्या हो गया? एवरीडे वी डिस्कस अ न्यू वर्ड। लेकिन अगर यदि मुझे हम लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, अ न्यू वर्ड इज ऑलरेडी डिस्कस, या फिर इज ऑलवेज डिस्कस, ठीक है। इज ऑलवेज बोलोगे या फिर एवरीडे बोलोगे, आप कुछ भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अ न्यू वर्ड इज डिस्कस्ड एवरी day, a new word is
always discussed इन क्लास, ठीक है, विदाउट डिस्कसिंग अ न्यू वर्ड वी वोंट मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये कैसा है, एक तरीके से जो एक्शन क्या हो गया, ऑलवेज, ऐसे यूज कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपको कैसे चेंज करना है, ये चीजें मैटर नहीं करती। मैटर यहाँ पे क्या करता है, अ न्यू वर्ड इज डिस्कस्ड इन क्लास बिकॉज वी आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू अस, हम लोग हमको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द न्यू वर्ड। ओके, नाउ आई एम ओपन टू टेक क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क मी। ओके सर, आई हैव मेनी क्वेरीज टुडे। मीनिंग ऑफ आई एम इलेटेड, आई एम इलेटेड का मतलब क्या होता है, देखिए मैं बोल सकता हूं कि आई एम हैप्पी, लिसन वेरी केयरफुली, आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड। यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया मैंने, इलेट। इलेट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा खुशी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड आ गया इलेट। अब आई एम इलेटेड, इलेटेड का मतलब क्या हो गया, आई एम इलेटेड, नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशन, दिस इज माई कंडीशन। जैसे आई एम एक्साइटेड होता है तो इट एंड्स विद डी, तो वैसे क्या आ गया, आई एम इलेटेड, ठीक है। बहुत ज्यादा खुशी के लिए वर्ड यूज होता है। केक वॉक का मतलब क्या होता है, इजी चीज है, बिल्कुल, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं, बहुत इजी चीज होती है, दैट इज केक वॉक। और दूसरा क्या है, हिट द नेल। जैसे आपने सपोज कीजिए मैं आपसे पूछूं कि टेल मी द फॉर्मूला ऑफ कम्युनिकेशन, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, और सडनली यू सेड सर 738% and 55, in that case what exactly you did, you hit the nail, बिल्कुल सही जगह आपने बिल्कुल मारा उस चीज को। तो जो नेल होता है दैट इज सिंपली जो कील होती है, यू हिट द नेल। तो वहां पे जो बिल्कुल सही चीजों पे आप बिल्कुल टारगेट को हिट करते हो, दैट इज यू हिट द नेल। सपोज इफ यू आस्क एनी क्वेश्चन टू योर टीम, चाहे आप ऑफिस में हो या फिर आप कोई कॉलेज में या फिर इसमें पढ़ाते हो, ठीक है, if student responds your answer, in that case what you can simply say that person hit the nail, जैसे ही पूछा तुरंत आपने उसका आंसर दिया। ओके, गुड। if it is clear please type yes, good। tell me other questions if you have। sir I was not getting time to make videos but after accepting अब देखो आप लोगों ने जो लिखा है ना, ये सारी की सारी चीजें, ये सब चीजें इसीलिए मैं बोलता हूँ राइट, कि जो भी आप चीजें एक बार के लिए कमिट कर लेते हो ना, तो वो कमिटमेंट आपको करना ही पड़ेगा। फिर आपके पास 24 घंटे में, सपोज कीजिए कि मैंने बोला ना, आपके पास एक काम है और आपके पास 24 आवर्स है, आप उस काम के लिए भी 24 घंटे लगाओगे, लेकिन अगर आपने 2 या 3 काम जोड़ लिए तो वो 24 आवर्स डिवाइड हो जाएंगे अपॉन द नंबर ऑफ वर्क्स व्हाट यू हैव। तो आप लिमिटेड टाइम है, लेकिन अगर आप उसमें एक्सेस बढ़ाते जाओगे, यू ऑलवेज गेट टाइम। ओके, तो वो 3 और 4 मिनट्स का भी आप 1 मिनट 2 मिनट का भी टाइम निकालो, आप बनाओ वीडियोस। ओके, ग्रेट, लव इट रितेश, राइट। सर कोट ऑफ द डे ये रहा ना, ये कोट, आज तो नेम के ऊपर डिस्कशन हुआ है, तो जो कोट जो भी वो भी उसी के ऊपर है, नेम्स आर द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर एज मेनी कोट्स एज यू हैव, ठीक है, जितना आप लोग अभी कोट्स आप लोग इकट्ठे कर रहे हो, इनको कंटिन्यू याद करते चले जाओ। क्यों मैं बोल रहा हूँ, जब मैं आप लोगों का इसका सेशन लूंगा, एक्सटेप4 का सेशन लूंगा ना, उस टाइम पे बताऊंगा इन सब चीजों की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, अगर आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, कर लो आप, एटलीस्ट 50 to 60 कोट्स आपको याद हो गए ना, आपकी स्पीच बहुत अच्छी शुरू हो सकती है। ओके सर, यू विल करेक्ट आवर वीडियो, नो, हम कौन होते हैं आपकी वीडियोस करेक्ट करने वाले, ठीक है, आप लोग खुद करेक्ट करोगे जब आप लोग अपने खुद के वीडियोस सुनना शुरू करोगे। अभी हम लोग करेक्ट करने लगे, हर चीज में हम लोग इतनी मिस्टेक निकालेंगे, आपकी वीडियोस बनने बंद हो जाएंगे। ओके, इसीलिए आप लोग उसको वीडियोस बनाओ, फॉरगेट अबाउट द मिस्टेक व्हाट यू आर कमिटिंग, डजंट मैटर। ओके, I sir, there are not my link lecture which type I covered the sir, there are not my link lecture which I covered the previous lecture। कोई आप एक बार के रखिए, आप एक बार टीम से बात कर लेना, ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है ना कि कौन सा लेक्चर का आपका वो एक्सेस नहीं है, ठीक है। आई होप यू मस्ट हैव गॉट ऑल द लेक्चर्स, एक्सेस आपको पूरा मिल गया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव प्रॉब्लम, राइट, व्हाट्सएप अस एंड वी विल हेल्प यू। ओके, you already clear, thank you so much sir and good night, great great great। okay, those who have any doubt do ask me। how to tranquilize in sentence। okay, आप लोगों ने इस वर्ड को कभी सुना है, ट्रैंकुलाइज का, कहीं पे किसने सुना है? बड़ा कॉमन वर्ड है ये, और एक जगह तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बड़ा यूज होता है वहां पे। एक वर्ड आता है ट्रैंकुलाइजर,
ट्रैंकुलाइजर हम लोग कब यूज करते हैं? लिसन वेरी क्लियर सर व्हाई यू डोंट मेक व्हाट्सएप ग्रुप? हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना सकते बिकॉज वी ऑलवेज रेस्पेक्ट द प्राइवेसी, राइट? वी डोंट वांट टू शेयर द कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन और पीपल अदर, ठीक है? उनके साथ शेयर नहीं कर सकते हम लोग, इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनता। ओके, फेसबुक ग्रुप पे है, आप लोग करें उस पर, और उस पर भी हम लोग बोलते हैं कि नेवर शेयर योर पर्सनल डिटेल्स, ठीक है? आप लोग शेयर ना करें, आप लोग अपना कंटेंट वीडियो करें, उस पर वर्क करें, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए बहुत आसान है, हम लोग बना सकते थे, लेकिन उसके जितने ज्यादा एडवांटेजेस है उससे ज्यादा कहीं डिसएडवांटेजेस है, ठीक है? हाउ टू यूज ट्रैंकुलाइज इन सेंटेंस, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वर्ड ट्रैंकुलाइज। ट्रैंकुलाइज आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं। ट्रैंकुलाइजर्स क्या होती है? गन होती है, ठीक है? और उसके अंदर ट्रैंकुलाइजर लगा रहता है, और व्हाट एग्जैक्टली इट डज, ठीक है? इट इज यूज्ड, राइट, टू शूट द एनिमल, ठीक है? किसी भी एनिमल को शूट करना है तो उसको ट्रैंकुलाइजर का हम लोग एक सीधा जो भी बुलेट होती है, बुलेट तो नहीं होता, वो एक इंजेक्शन होता है, वो जाके सीधा की सीधा उसके एनिमल की बॉडी पे लगता है, ठीक है? और उसके बाद फिर वो थोड़ा सा बेहोश हो जाता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं आफ्टर 4 और 5 आवर्स, ठीक है? उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है और इट सिंपली रन्स अवे। वो सारी की सारी चीजें होती है। अदरवाइज आप किसी लायन का, लेपर्ड का, इन सब का, टाइगर का ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते विदाउट डूइंग ट्रैंकुलाइजर्स। तो वहां पे क्या वर्ड होता है? ट्रैंकुलाइज। तो व्हाट एग्जैक्टली इट डज, इट सिंपली गिव द सूद। वहां पे पूरा का पूरा जो चीजें होती है उसको शांत कर देता है, जितना भी ज्यादा वो दंगा मचा रहा होता है जानवर है, वो कैसा हो जाता है? पूरा का पूरा ट्रैंकुलाइज। तो वर्ड यहाँ पे क्या है? उसके इम्पैक्ट को कम कर देना, यहीं पे वर्ड आया था ट्रैंकुलाइज। दूसरा आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेडिसिन होती है, ठीक है, मेडिसिन में भी ट्रैंकुलाइजर्स आते हैं। सर कैन यू राइट दिस वर्ड? ओके, आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा इस वर्ड को, मैं वहीं पे डिस्कस कर देता हूँ, लिखने की जरूरत भी नहीं है। जब हम लोग वोकैबुलरीज डिस्कस कर रहे थे ना, आई थिंक आई यूज दिस वर्ड, ये रहा, ट्रैंकुलाइज, ठीक है? दूसरा वर्ड क्या होता है? यू मस्ट हैव नोटिस लॉट्स ऑफ मेडिसिन, ठीक है? मेडिसिन के अंदर भी होती हैं द मेडिसिन विच रिलीव्स द पेन, जो पेन को कम कर देती हैं, ठीक है? सेडेटिव मेडिसिन होती है जिनको लेने का नींद आ जाती है, पेन किलर्स होते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली ऑल दीज थिंग्स डू? दे ट्रैंकुलाइज, जो दर्द होता है या फिर जो आपकी चीजों को शांत कर देती है। तो यहाँ पे भी वही आ रहा है, टू मेक बैड थिंग्स सिचुएशन लेस इंटेंस। तो वहां पे आप यूज कर सकते हो ट्रैंकुलाइज। और ट्रैंकुलाइज की टोन कैसी होगी? पॉजिटिव टोन होगी। ओके, so if I answered your query, please type yes. Still if you have doubt, okay, do ask me. Any other doubt if you have? आप लोग का जो आज जो लोगों ने ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं कि 9 to 10:30 we take session, and after 10:30, right, problems are discussed. Listen very carefully. Problems are discussed. Your questions, your queries are answered. यहाँ पे क्या बात आती है? Who answers? I. ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, मैं किसको इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ? क्वेरीज को और क्वेश्चंस को, राइट? सो ऑल द क्वेरीज आर आंसर्ड। क्या रोज होती है? यस। पहले हुई थी? हाँ। आज हुई है? होती है, आगे भी होंगी। दिस इज द पैटर्न। हु रिजॉल्व्स द क्वेरीज? आई। बट यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंस अपने आप को ना देके किसको दे रहा हूँ? क्वेरीज को दे रहा हूँ। ऑल द क्वेश्चंस, राइट, आर आंसर्ड। गुड गुड, वेलकम। हाँ, आप यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन नमनेस जो होती है, नमनेस का तो मतलब बिल्कुल ही हो गया कि आप सो गए हो, ठीक है? तो वहां पे नमनेस यूज होती है। ट्रैंकुलाइज का मतलब ये भी होता है कि आपका थोड़ा बहुत गुस्सा है, उसको भी आपने अगर शांत कर दिया, तो वहां पे भी वी यूज द वर्ड ट्रैंकुलाइज, ठीक है? बहुत अच्छा वर्ड है ये। अब ये वर्ड ट्रैंकुलाइज देखना, आज आप लोगों ने सुना है ना, ठीक है? विद इन 3 और 4 days, राइट, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग दीज वर्ड्स। सारे वर्ड्स आपको दिखने लग जाएंगे। ओके, ग्रेट। Any more questions if you have? Do ask questions. आप लोग कंटिन्यू लेक्चर्स को पढ़ो. The people who have been attending these classes from the very beginning, आपको भी लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 जिसमें भी प्रॉब्लम है, do ask any questions whatever you want to ask. Okay? And people who have joined today for the first time, आप लोग अपने वीडियोस बनाना शुरू करो. कोई भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है, we will help. Okay? Great. So we are ending this session. आपको जो भी डाउट है आप लोग नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो. उसके बाद भी आप लोग अपने डाउट्स को कंटिन्यू लिखना शुरू करो. जितना डाउट्स लिखोगे उतना ही आपके पास चांसेस मिलेंगे डाउट्स क्लैरिफाई होने के. समवन टाइप समथिंग, लेट मी रीड. सर टुडे इज माय सेकंड डे बट इट इज सुपर्ब. ऑल दिस सेशन वुड बी सुपर्ब, राइट? और सुपर्ब सेशन के साथ साथ आपको भी सुपर्ब बनना है, राइट? दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी.
So आप लोग कंटिन्यू वीडियोस बनाना शुरू करो, start making notes as much as you can. Okay, great. So we are ending this session. I hope it gave lots of values. It was pleasure interacting with all of you. I thoroughly enjoyed. Okay, bye bye. Someone type something, let me read. I got some questions. Okay, good night only. Good night, good night. Okay.